We'll begin the class. Today's class is on all essays in the academic and GT book, which have been seen in the past related to buildings, architecture, housing. Okay. So I thought there were only 5, 7, 10 essays at the most, but when I started compiling them, the number was much above that. So I spent the whole of yesterday organizing them, putting them together, writing down their, segregating their points so that we'll do ideas, and then we will touch one type of essays, how to write the intro and conclusion. Okay. Is that fine for the new students also? Because every day, you know, whatever my classes of writing, it caters to the students who have their first day with me, and it also caters to those who have already spent almost 1 month with me. So every class is like a beginner class. Don't worry about that. Okay. The first essay which we have in front of us here is that many countries construct modern buildings to give a good view of towns and cities. Some people say that countries should make new buildings with traditional style to preserve their culture as part of their identity. Do you agree or disagree? Okay. So you can handle it anyway. This is an agree disagree essay. What is important to learn in an agree disagree essay is that your whole essay depends on your introduction. Okay. ऐसे नहीं है कि इसमें सिर्फ ये चीज डालनी है या वो चीज डालनी है. अगर आपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीज रखी है, your essay will be based on that. Okay. So I have, in my essay which I have written, I have agreed, and so I have made all 3 paragraphs telling that why new buildings should be made in traditional styles. Okay. So let us see how to handle it. You can also disagree. Okay. You can also disagree, and you can say that new buildings should be made in the modern style. And for that also, believe me, when you have finished today's class, you will have points for that also. You can make this essay with agree, or you can make this essay with disagree also. Okay. मैम मुझे यही essay आया था last month ना. Oh really? Yes मैम. तो रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत जल्दी रिपीट होएगा. हाँ जी मैम, पीछे 10 अप्रैल को ही आया ये वाला ऐसे मुझे. अच्छा, एग्जैक्टली सेम. सेम यही सेम. बस यहाँ पर ये है कि some countries ये है, मतलब countries की जगह गवर्नमेंट था, मतलब some people say that government should make new buildings in traditional style. तो एक yes बात मैम, है. सेम डिट्टो यही था मैम. ओके ओके मैम आप. हाँ, एक मिनट, आई हैड टू म्यूट यू. अब बोलो क्या बोल रहे हो. हाँ जी मैम, मतलब गवर्नमेंट कंट्रीज की जगह गवर्नमेंट था, बाकी सेम टू सेम यही था मैम. एग्री डिसएग्री सेम. ओके चलो. मैम ऑन 21st of March मुझे इससे you cannot say इससे मिलता जुलता, but the essay which I had, that I'll just let you know. तो उसमें ऐसा था कि गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होता है स्टूडेंट्स का, उसको स्पॉन्सर करना चाहिए गवर्नमेंट ने फॉर एवरीबडी. And some people say that no, it should only be on the basis of either scholarship, मतलब जैसे आप merit के basis पे, या फिर on the basis of reservation. So how much do you agree to disagree and give your, explain your side. ऐसे था मुझे on वो reservation और वो वाला टॉपिक ना अभी ना मुझे बाद में लिख के भेजना, exactly आपको जितना verbatim recall आ जाए उसका. जी मैम. Okay, I'll need the topic because similar topics are there in my book. Okay? Yes, और मैम दूसरा वाला जो था वो भी मुझे हल्का सा याद आ रहा है, वो चार्ट भी मैं वो भी आपको निकाल के मैं दोनों भेजती हूँ मैम आज. I'll do that. Okay. Yeah. Okay, thank you. Okay, so this is the essay on whether new buildings should be made in traditional style. I have agreed, and because so uski introduction आप ऐसे लिख सकते हो, it is believed by some people that it is believed by some that okay, that new buildings, new construction should be done in the traditional styles. Okay. So that the culture and the identity of the country is preserved. I agree with it. I agree strongly. I strongly agree with this, with this trend. Okay. So reasons क्या डाले मैंने तीनों पैरास में.
First reason I have put that firstly, they are undoubtedly a representation of a country's past culture and its people's identity. If people's houses are also built in a similar pattern, there would truly be no diversity left in the world. Okay, traditional architecture is one of the last remaining methods to stay connected to our past history and culture. अगर नए तरह से बनने लग गए ना, तो ये मैंने लिखा है कि डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, सब एक जैसे, सारी दुनिया में एक जैसी बिल्डिंग्स दिखेंगी, और वो जो डाइवर्सिटी है, जो ब्यूटी देती है पूरी जगह को, जो एक डाइवर्सिटी की हिंदी क्या होती है? विभिन्नता में that should be there. Okay, that is what I have written, that should be there. So if there is no diversity, it will be a dull and boring place. इसलिए जो बिल्डिंग्स है हर कंट्री को अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में बनानी चाहिए, ताकि डाइवर्सिटी पूरे देश की, पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी बनी रहे, और साथ में कल्चर और कल्चर प्रिजर्व रहे. सेकेंडली, जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है ना, वो टूरिज्म भी अट्रैक्ट करेगा. टूरिस्ट स्पेशली देखने आएंगे ऐसी जगहों को. ओके, सो जैसे यूरोप में कई एरियाज हैं जहाँ पुराने स्टाइल के घर है, तो टूरिस्ट स्पेशली देखने जाते हैं उनको, और वहाँ उन स्ट्रीट्स में वॉक करते हैं, एंड दे गेट दैट फील. वी वेंट टू गोवा, वहाँ पे एक जगह हमने पंजिम में, देयर वाज अ प्लेस इन पंजिम जहाँ पे 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स उन्होंने एज सच प्रिजर्व करी हुई हैं, एंड पीपल वॉक थ्रू दो स्ट्रीट्स टू गेट अ टच ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन. वहां पे जो पोर्चुगीज रहते थे उनके घर हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं चेंज करे उनको, वैसी गलियां, वैसे घर, वो एक पूरा एरिया मेंटेन करा हुआ है. हम ऐसे ही किसी एक में वी स्टेड इन वन सच लॉज, एंड इट वाज रियली वर्थ इट, इट वाज वेरी नाइस. तो ऐसे वो जो है ना, टूरिज्म भी प्रमोट होता है. ठीक है. एंड द फाइनल एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर इज इट्स लॉन्जेविटी. अब जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है ना, आप देखो पुराने जो किले या जो कुछ बने हैं, मतलब कितने 100 सालों तक कितने प्रिजर्व्ड रहे हैं. जो मॉडर्न बिल्डिंग है वो 40-50 साल में दोबारा बनाने लायक हो जाती है. इट इज नॉट, यू नो, इट डजंट हैव इट्स लॉन्जेविटी. ओके, ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स जो मटेरियल्स जो पहले लगते थे, जैसे स्टोन है, मार्बल है, लाइम है, मॉर्टर है, वो आज के मॉडर्न मटेरियल्स जो हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, और ग्लास एंड प्लास्टिक है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड स्टील है, इन सब से वो ज्यादा ड्यूरेबल है. अब देखो जो मॉडर्न मटेरियल्स है ना, ये टेम्परेचर चेंजेस के साथ छोटे बड़े हो जाते हैं, पर जो पुराने मटेरियल थे वो नहीं होते थे, इसलिए वो बिल्डिंग्स ज्यादा स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग है. आपने कभी महसूस करा होगा कि कोई आपके दादाजी का या किसी का घर आपके फादर ने तोड़वाया और दोबारा बनवाया, उसको तोड़ने में दम निकल गया होगा तोड़ने वालों का, मेसन्स का, और आज वाली बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करना कितना इजी होता है. हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच अ थिंग कि पुरानी कोई बिल्डिंग की डेमोलिशन देखी है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's really difficult. Yes, ma'am. हाँ. So Yes, ये वाले पॉइंट्स 3 अच्छे पॉइंट्स थे, इनसे 3 पैरे बनाए हुए हैं. सो पहला पैरे में क्या डाला है कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, दूसरे पैरे में टूरिज्म है, तीसरे पैरे में उनकी लॉन्जेविटी है कि एक बार बनाओगे कितने साल चलेंगी वो बिल्डिंग्स, उनको दोबारा से मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी. और आप ये भी देखो, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनकी छतें ऊंची थी, और उसकी वजह से एयर कंडीशनर, इवन कूलर्स एसी के बिना भी गुजारे होते थे, ठंड मेंटेन रहती थी कमरों की. आजकल छत नीची है, जल्दी से घर गर्म हो जाते हैं, ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो एयर कंडीशनिंग करानी पड़ती है. ये पॉइंट आपको पता है, ये नोट करा है कभी आपने किसी ने पुराने घरों में जाके? दोज रूम्स वर कूलर. ओके, Very cool. Yes, ma'am. हाँ, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो. ये 3 पैरे बने, और अगर आप इस ऐसे से डिसएग्री करोगे तो मॉडर्न स्टाइल से बनाओगे, उसके आपको आगे वाले एसेज में उसके भी पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है. सो आइडियाज के लिए दिस फाइल इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. दिस विल गिव यू आइडियाज इवन फॉर स्पीकिंग, एंड नॉट जस्ट ऑर्डिनरी आइडियाज, वेरी गुड आइडियाज इफ यू प्रिपेयर वेल. और आपका क्यू कार्ड बिल्डिंग वगैरह पे या किसी चीज पे हुआ, फॉलो अप्स ऐसे ही होंगे, उनमें ऐसे ही आपने आंसर्स उठाने हैं, एंड यू विल डू रियली वेल. ठीक है. जो अगर आप डिसएग्री करते हो तो मेन ये पॉइंट्स हैं, पर आगे चल के और भी पॉइंट्स हैं. डिसएग्री करते हो तो फर्स्टली आप डाल सकते हो कि लैंड स्केयर्स है, और जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो बहुत जगह घेरती हैं, और जो नई बिल्डिंग्स है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती हैं, वो थोड़ी जगह में ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती है. सो यू कैन सपोर्ट दैट पॉइंट ऑल्सो. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि आप कुछ भी अपनी इंट्रोडक्शन में लिखो, अकॉर्डिंगली अपने पैरे बनाओ, योर एसे विल बी वेल डन, राइट.
Secondly, modern materials are more practical. Now we use concrete and steel instead of stone, timber or brick. अब इसमें आप ये कह सकते हो कि अब पेड़ नहीं काटने पड़ते, एनवायरनमेंट बचता है नई बिल्डिंग्स में, ठीक है. फाइनली हमें एनर्जी एफिशिएंट हाउसेस चाहिए. मॉडर्न बिल्डिंग्स में डबल ग्लास फ्रंट वॉल्स होती हैं, पीओपी होती है, पीओपी सीलिंग्स होती हैं. फॉल सीलिंग लगवाते हैं ना लोग आजकल पीओपी की, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट लेसन हो जाती है, कम हो जाती है. So in any case, if you get this essay now, you will be able to do it well. बलजीत, आपने कौन से पॉइंट्स डाले थे? Yes. मैंने तो जैसे यही डाला था कि अगर पुराने जैसे आजकल मतलब अगर पुराने तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैम आज की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी. लाइक स्काई स्क्रैपर्स लगा लो तो मैम उसमें अगर लिफ्ट वगैरह नहीं होगी. आपने डिसएग्री करा ना, तो ठीक है. That is what I am saying. You go either way, you will do well. हाँ जी मैम, हाँ जी. बस आपको सपोर्ट करना है. आपने इंट्रो में क्या लिखा है? हाँ जी, डिसएग्री था. हाँ, okay. Now this is another essay. There are more new towns being built now. अच्छा, by the way, मैंने ये सारे essays ना पीछे इसी फाइल में पीछे आपको सुबह डाल दिए हैं, ठीक है? There are more new towns being built nowadays. It is more important to include public parks and sports facilities than shopping centers for individuals to spend their time. To what extent do you agree or disagree? Now this essay is कि आजकल नए टाउन्स बनाए जा रहे हैं. अब क्वेश्चन शुरू होता है. आजकल नए टाउन्स बनाए जा रहे हैं, इसके साथ आपने एग्री डिसएग्री नहीं करना है. You have to agree. Okay. So you don't have to agree disagree with कि नए टाउन्स बना रहे हैं. You have to agree disagree with कि जो नए टाउन्स बन रहे हैं उसमें पब्लिक पार्क्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है वो बनाई जानी चाहिए, ना कि शॉपिंग सेंटर्स. ठीक है, मैंने अपने ऐसे में एग्री करा है. आप डिसएग्री भी कर सकते हो. आप कह सकते हो कि दोनों चीजें बनाई जानी चाहिए वाइल करके, ठीक है. बट मैंने एग्री करा और मैंने लिखा है कि टाउन्स के अंदर पार्क्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाओ और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं इनको बाहर बनाओ. और आजकल ये ट्रेंड भी है, आपने देखा ही है, और साथ में ऑनलाइन शॉपिंग भी आ गई है. तो इन चीजों से शहर के अंदर की जगह मत यूज करो. अंदर क्या बनाओ, शॉपिंग अंदर बनाओ पब्लिक पार्क स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो कि लोगों के ज्यादा काम आएंगे. तो अब ये ऐसे समझ आ गया. आप किसी भी तरह लिख सकते हो. आप जो अपनी इंट्रोडक्शन में डालोगे उस वे में अपने पैरास में सपोर्ट करो. आपका ऐसे करेक्ट है. यू गेट माई पॉइंट. ऑल ऑफ यू न्यू स्टूडेंट्स, आपको आइडिया लग रहा है एग्री डिसएग्री ऐसे का? दोनों एग्री डिसएग्री ऐसे आए जिनका आज फर्स्ट डे है. यस मैम. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने फिर एग्री करके मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं. यू डू नॉट नीड टू ऐड ऑल दीज पॉइंट्स. उस टाइम जो आपके पास दो तीन चार पॉइंट आए उनको पकड़ो, उनको एक्सपैंड करो, अपना हिस्से बनाओ एंड काम खत्म. ठीक है, बट वी विल डू ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज वंस यू हैव द पॉइंट्स इन योर माइंड, वहां पे आपको कोई ना कोई तो याद आ ही जाएंगे. आप लिख सकते हो, फर्स्टली दीज फैसिलिटीज हैव ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी. जब लोगों के पास इजी एक्सेस होएगी ना पार्क्स की और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, इजी एक्सेस होएगी, शहरों के अंदर होएंगे, उनके घरों के पास होएंगे, सो मोर एंड मोर पीपल विल गो देयर, आउटडोर्स अपना टाइम स्पेंड करेंगे और फ्रेश एयर ब्रीथ करेंगे. ठीक है. सेकेंडली, प्लांट्स एंड ट्रीज जब होंगे शहरों के अंदर तो पोल्यूशन कम होएगी और एयर क्वालिटी बेटर होएगी, इंप्रूव होएगी. ठीक है. थर्डली, जो पार्क्स अगर शहरों के अंदर है ना, तो लोगों का जो नेचर से कनेक्शन कट रहा है वो बढ़ जाएगा और उनकी फिर स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होएगी लोगों की, जब उनका नेचर से. ये एक ऐसे बाद में आया इस साल कि आजकल लोग नेचर के साथ टाइम स्पेंड कम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है. तो उसमें वो ऐसे भी अभी हमने लिखा. तो ये वही पॉइंट है कि नेचर से कनेक्शन लोगों का कट रहा है क्योंकि ग्रीनरी उनके आसपास कम हो रही है. ठीक है. तो ये पार्क्स वगैरह जो है हेल्प करेंगे. सेकेंड इज these facilities create safe neighborhoods with fewer violent and property crimes as more people are out on the street and neighbors tend to support and protect one another. अब अगर ऐसी फैसिलिटीज होंगी तो लोग बाहर भी ज्यादा निकलेंगे. अगर लोग घरों से बाहर ज्यादा निकलेंगे तो क्राइम रेट उस एरिया का कम हो जाएगा. ठीक है.
ये point समझ आ गया आपको? You can have this point also. Then youth also have the opportunity to use their endless energies in sports and so are less likely to be involved in delinquent acts. What is delinquent? Crime. किन्होंने हाँ, crime. किन्होनिया हाँ, किनोनिया नहीं, delinquent is crime. Crime. Okay, crime, criminal acts हो गए delinquent. Delinquent होता है अगर person के लिए use करें, delinquent है तो वो है criminal. ठीक है, और act delinquent है तो criminal act हो गया. Finally, these parks and sports stadiums can generate revenue for the town later on as they can be used to host art and music shows or local games. People are embracing the convenience offered by online shop. फिर मैंने ये भी लिख दिया कि अब online shopping जो है वो लोगों को convenient लग रही है और लोग उससे shopping कर रहे हैं, तो shopping center को के लिए जगह क्यों शहर के अंदर बनानी है. And suburbs में जो थोड़े बहुत shopping centers हैं, they are good enough for the people's needs. Okay, they are good enough for the people's needs. Now I have given you quite a few points. You can have 3 paragraphs में आप 4-5 point 6 point ले लो इनमें से और अपना ऐसे बना लो. ठीक है? मैं redundant ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Redundant ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਏ, which is not needed now. Redundant. Okay, thank you. Just wait. मैंने इसमें एक वर्ड एक्सपेंडेबल भी डाला हुआ है अपने एस्से में. एक्सपेंडेबल होता है जिसके बिना गुजारा हो जाए. रिडंडेंट भी वही है, सेम. रिडंडेंट, redundant, not needed or useful, ये वाला मीनिंग है. Okay, which is not needed or useful. So they have made the places redundant. और इसमें मैंने expendable word भी डाला है. Expendable. बुक में ऐसे में डाला हुआ है. Expendable. Expendable is. मैम जैसे ना किसी को आवाज नहीं ऑडिबल है थोड़ी, I don't know किसको. Somebody can't hear me. सुनाई दे रही है. उनको ना उसमें लिखो कि वो कुछ कॉल ओवर इंटरनेट करें अपने कनेक्शन में, प्लीज उसमें लिख दो कॉल ओवर इंटरनेट ऑप्शन. दीपाली तो नहीं आ रही. हाँ दीपाली हाँ, कॉल ओवर इंटरनेट की ऑप्शन लिख दो प्लीज. अरबीना ने लिख दिया है. लिख दी. ठीक है. ओके, so expendable is if you consider people or things to be expendable, you think that you can get rid of them when they are no longer needed, or think it is acceptable if they are killed or destroyed. Indispensable word आपको पता है जिसके बिना गुजारा नहीं है. तो बस dispensable means जिसके बिना गुजारा है. तो अब जो शॉपिंग सेंटर्स है उनके बिना लोगों का गुजारा हो जाता है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन है और उनके पास इवन वो है ऑप्शन स्टोर्स शहर के बाहर जो स्टोर्स हैं उसकी. ठीक है. सो दिस इज इट. लेट मी कम बैक टू माय फाइल. ओके. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम आपने जो बोला कि लोग ज्यादातर बाहर निकल सकते हैं तो फिर ये क्राइम कम हो जाएगा, तो इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? ऐसे होता है ना, जैसे अब जो आफ्टरनून्स में जब दोपहर होती है तो क्राइम होता है बहुत, घरों में चोरियां होती है. आगे केसेस होते थे ऐसे क्योंकि बाहर कोई होता ही नहीं था. अब अगर पार्क्स होंगे, ट्रीज होएगी, शेड होएगी, हवा, कोई ना कोई तो बाहर निकल के बैठेगा ही. लोग निकलेंगे ना घरों से बाहर, तो जब लोग बाहर होंगे तो क्राइम करने वाले ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. उस वे में मैं कह रही हूँ कि क्राइम के इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे बिकॉज पीपल विल बी आउट. ओके देयर. ओके, थैंक यू. ओके, अब ये है, some people say that the government should not put money on building theaters and sports stadiums. They should spend more money on medical care and education. Do you agree or disagree? अब यहाँ पे भी है कि theaters and sports stadiums नहीं बनाने चाहिए और मेडिकल केयर और एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए. तो आप लिख सकते हो कि ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट शुड स्पेंड इक्वली ऑन ऑल दिस. फिर आप मेडिकल केयर पे खर्चने के फायदे लिख सकते हो, वो पुराने हमारे एसेस में आए हुए हैं, हेल्थ एसेस में आइडियाज. एंड देन यू कैन ऑल्सो एजुकेशन एसेस में मैंने कराया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट. जो बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उसके फायदे लिख सकते हो. एंड देन यू कैन गिव इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर्स एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम्स.
वही इंपॉर्टेंस है जो चल रही है। थिएटर्स में आर्ट है, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है, वो भी लोगों की बेसिक नीड है। फिर आर्टिस्ट नेम एंड फेम अर्न करते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स भी, अगर स्टेडियम्स होंगे तो वहाँ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होंगी, रेवेन्यू जनरेट होएगा, बच्चे बाहर निकल के खेलेंगे। ये सारे फायदे आप लिख सकते हो, और लिख सकते हो इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। Like, ma'am, this is case of तो ये मैम हाँ, इसमें पार्शियली while, अग्री होगा। हाँ while सेंटेंस बनाओ। आप लिखो while theaters and sports stadiums are important, education and healthcare are as important. as important का मतलब है उतने ही important है, तो equally important वाला while बन जाएगा आपका। बहुत अच्छा। And you will not have to use I partially agree with this. Ma'am, Okay. can you repeat again the sentence? While theaters and sports stadiums are important, comma, basic medical care and education facilities are as important. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, then we'll go to the next essay. It is more important for a building to serve a purpose than to look beautiful. Architects should not worry about producing a building as a work of art. Do you agree or disagree? मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रही हूँ। जब भी मैं ये ऐसे अपनी बुक का पढ़ती थी, जो मैंने ही लिखा हुआ था पता नहीं कुछ साल पहले, तो मेरे को ना रोना आ जाता था। इतना गंदा लगता था मुझे ये ऐसे। मेरे को समझ ही नहीं आती थी इस ऐसे को कैसे लिखूं। You won't believe it, मैं बहुत थॉट दी इस ऐसे को। कल मैंने कहा आज इसको लिख के छोड़ना है दोबारा। So I've rewritten this essay. मुझे समझ ही नहीं आता था इसको किस वे में पुट करूं। फिर मैंने फाइनली 4 पैरे का ऐसे बनाया और मैंने लिख दिया कि both things are equally important. The utility of a building as well as the beauty of a building, both are equally important. ये लिखा है। और फिर एक पैरा why a building should be beautiful and then why a building should be utilitarian. दोनों के पैरे बने हैं बड़े अच्छे, और then you can reiterate the same thing in the conclusion. Okay? So the main reason why building need to have aesthetic appeal is that beauty in architecture brings joy and happiness is a fundamental human need. ये point आप लिख पाओगे? Easy लग रहा है कि building को सुंदर क्यों होना चाहिए? ठीक है, aesthetic appeal होती है जो देखने में अच्छी हो चीज। Aesthetic appeal, which is good to look at. It has, okay, attractive. So beauty जो architecture में जो beauty है, it brings joy and happiness is a fundamental human need. Then beautiful buildings also enhance the utility. ये point मुझे बड़ा अच्छा लगा कल। तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था कि जो well designed hospitals हैं उनमें patients का treatment ज्यादा जल्दी हो जाता है। well designed schools हैं उनमें better learning environment होता है, and workplaces with good architecture experience higher productivity. So architecture जो है अच्छा होना, सुंदर होने, उसकी importance है। तो ये points मुझे 2 points बड़े अच्छे लगे। So this you can put in 1 paragraph, right? Okay. And they are making sense also. ठीक है कि अगर जो तभी तो इतनी केयर से हॉस्पिटल, स्कूल्स इतनी केयर से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर होए, बेटर ट्रीटमेंट होए, और even workplaces with good architecture have higher productivity. ठीक है? And then the second paragraph, why a building should be utilitarian, उसके लिए तो कुछ ज्यादा मतलब सोचना भी नहीं पड़ा। उसके पॉइंट्स तो पहले ही थे कि देखो यूटिलिटी तो बिल्डिंग की पहले पूरी करनी है उसको, अदरवाइज बिल्डिंग यूजलेस हो जाएगी। अब चंडीगढ़ में ना एक बिल्डिंग बनाई ओल्ड पीपल के लिए, ऐसे बड़ी अपार्टमेंट ब्लॉक, और 5 स्टोरी, somebody was telling me yesterday only, 5 स्टोरी, और लिफ्ट नहीं लगाई। अब आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हो तो लिफ्ट के बिना 5th स्टोरी तक कौन जाएगा? 5th फ्लोर तक। मैम, हाँ, यूटिलिटेरियन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे यूटिलिटी ही है जो अपना यूज पूरा करे, जिसके लिए वो बनाई गई है। ओके, थैंक यू मैम। जैसे अब बिल्डिंग है, अब यूटिलिटेरियन का सबसे पहला पॉइंट है कि आजकल पॉपुलेशन इज बर्जियोनिंग और हमें ज्यादा लोग कम जगह में अकोमोडेट करने हैं। ये बात समझ आ रही है ना आपको? अब जो बिल्डिंग है उसको, तभी तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं कि उसमें ज्यादा अपार्टमेंट्स बन जाएं, ज्यादा लोग अकोमोडेट हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी उसकी पूरी करनी ज्यादा जरूरी है किसी भी बिल्डिंग की। एंड सेकेंड थिंग इज
अगर जो बिल्डिंग एल्डरली के लिए मेंट फॉर है तो उसमें एल्डरली के हिसाब से उसमें रेलिंग्स होनी चाहिए, स्लोप्स होने चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक और एग्जांपल अभी याद आ गई। जब हम छोटे थे मेरे पेरेंट्स एक घर देखने गए, दे वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, दे वेंट टू सी द हाउस। तो उस टाइम पे ना ऐसे घर थे कि एंटर करो, एक स्टेप उतर के ड्राइंग रूम है, फिर 2 स्टेप चढ़ के डाइनिंग टेबल है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर एक कॉन्सेप्ट लग रहा था। पर मेरे पापा ने बाहर आके बोला कि हम नहीं ऐसा ये वाला ले सकते। मैंने कहा क्यों, इतना तो सुंदर है पापा, ये वाला ले लेते। कहते नहीं ले सकते बेटा, हमने अभी आज आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी, उनके लिए तो ये चढ़ना उतरना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर 2 मिनट के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना तो 2 सीढ़ियां चढ़ो। और फिर कहते हमने भी ओल्ड इस एज में पहुंचना है, तो हमने ये घर ऐसे नहीं लेना कि 1-2 साल के लिए लेना, हमें जो घर लेना है वो हमेशा के लिए लेना। तो वी विल नॉट गो इन फॉर सच थिंग। तो मुझे ये बात बड़ी समझ आई उनकी कि हम लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता कोई चीज। तो यूटिलिटेरियन बिल्डिंग इज अ मस्ट। ये अब समझ आया आपको पॉइंट कि यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और Yes, ma'am. थर्ड है कि आजकल के जो आर्किटेक्ट्स है ना, उनको ग्रीन बिल्डिंग्स पे फोकस करना है। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब समझ आ रहा है? मैम बता दो ये भी। एनवायरमेंट, Environment. कोई भी Eco-friendly. चीज जो कोई ग्रीन चीज है, दैट मींस इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो आजकल हमें ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है जो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करती है। मैम ठीक है? फॉर एग्जांपल इसको हाँ। कहाँ से कोरिलेट किया हुआ है? बेटे अब मैं अभी आपको ये वाला ऐसे भी अपना खोल के उसमें मैंने एक्सपैंड भी करे हुए पॉइंट्स, वो भी आपको भी दिखा देती हूँ। और बेसिकली इट इज दैट वो सोलर हीटर्स लगते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर, सोलर पैनल्स वाला पॉइंट दे सकते हो। वो पैनल्स लगाते हैं सो हाँ, दैट हाँ, ये ऐसे ये मैंने एनर्जी का पूरा ऐसे कर लिखा है। यूटिलाइजेशन। तो वी विल रीड दिस होल एसे एंड सी। और कुछ आपको अभी भी लग रहा है तो मैं और भी चेंजेस कर सकती हूँ। ओके, अच्छा एक आप इसमें वर्ड डाल सकते। अच्छा अभी आप आज क्या कर रहे हो, मैं आज बोलना भूल गई क्लास की बिगनिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज विच आई ऑलवेज से, vocabulary मैम। yes, मैम very बना good. रहे हैं। Have Yes, ma'am. you set a page for building and architecture vocabulary? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. जितने essays है ना उनमें वो वाले वर्ड्स आप कोई ना कोई पिक एंड चूज करके इनकॉर्पोरेट कर लेना। अच्छा, एंड बेस्ट थिंग इज अगर आप उनको ना सेंटेंस वाइज ही याद कर लो। जो वीक बच्चे हैं वो उन वर्ड्स के आसपास सेंटेंस बुनो और उनको याद कर लो। देन योर एसे विल बिकम अ पीस ऑफ केक। बिल्डिंग आर्किटेक्चर का कोई भी एसे आ जाएगा तो अच्छे बैंड ले जाओगे। ओके ओके। It is believed by some that the purpose for which a building is made is more important than its outward appearance or facade. इसकी pronunciation है facade. Facade is the outward appearance of any building. Okay. I believe that while utility is important, looks of the building are as important. I also believe that today's architects have the capability of designing buildings which serve the purpose as well as appeal to the eye. ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन जो है मैंने आज 3 सेंटेंस की बना दी। वैसे ये वाला सेंटेंस मैं नहीं भी डालूंगी तो चलेगा, पर ये है कि मैंने ये लिखा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बिल्डिंग जिस काम के लिए बनाई जा रही है वो ज्यादा जरूरी है देन उसकी बाहर से वो कैसी दिखती है। मैंने लिखा है कि मेरा मानना है कि यूटिलिटी तो इम्पोर्टेंट है पर लुक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखो एज इम्पोर्टेंट मीन्स इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है। और मैंने ये लिखा है आई ऑल्सो बिलीव, मेरा ये भी मानना है कि आज का जो आर्किटेक्ट है उसके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करने की जो अपना पर्पस भी सॉल्व करे और आंखों को भी देखने में अच्छी लगे, आंखों को भी लुभाए। समझ आ गया इंट्रोडक्शन? मैम Yes, ma'am. यस। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ही व्यू दे सकते हैं ਆਪਾਂ, है ना, अभी तो फर्स्ट दोनों भी ही ते देने सेकंड भी। जे अभी भी तो दोनों देने हैं। अभी नहीं बताओ, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बोल के बनाओ सेंटेंस। मतलब ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਲ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਈਲ यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट लुक्स ऑफ बिल्डिंग
ਆਰ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। तो मैंने दोनों लिखे हैं ना, ये आपके सामने यही सेंटेंस तो है जो मैंने लिखा है। पढ़ो Yes, इसको। ma'am. मैंने क्या लिखा है? While utility is important, looks of the building are as important. यही कह रहे हो ना आप? यस मैम, अगर हम कोई भी मतलब ऐसा ऐसे हो एग्री डिसएग्री एज हाँ। लिख कर बना दें तो ऐसे पार्शली हो जाएगा। अगर आपने इक्वल करना है तो ऐसे लिखोगे, पार्शली हो जाएगा। अगर आपने इक्वल नहीं करना है, 2 और 1 पैरे 5 पैरा कॉन्सेप्ट रखना है, तो आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कर दो, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके 2 पैरे बना दो। ठीक है? ओके मैम। हाँ। यस एज इम्पोर्टेंट तभी I have a लिखना जब doubt. आप इक्वली कह रहे हो। ठीक है? यस Ma'am, I have a doubt. यस। So ma'am, any essay, let it be agree disagree or let it be problem solution essay. In that essay, what I have seen in the your writing book as well, majority of the times the introduction is in third person. तो मैम ऐसे चलता है ना, इंट्रोडक्शन अगर थर्ड पर्सन में लिखे, क्या मुझे देखो, स्टार्टिंग अगर कोई कह रहा है तो फिर थर्ड पर्सन से होएगी। अगर फैक्ट हाँ। दिया हुआ है तो फिर इट इज इररिफ्यूटेबल करके करोगे। irrefutable, how हाँ, do I वो put सच it, है। ma'am? अगर वो कोई कुछ कह नहीं रहा है, वो है। यहाँ पे तो पता चल रहा है ना कि कोई कुछ, इट इज somebody's belief कि बिल्डिंग का हाँ। पर्पस सॉल्व करना, तो ऐसे इट इज बिलीव बाय सम। ठीक है? यस करेक्ट। मैम जी, और मेरा उसके डाउट भी था। हाँ, बोलो। मैम उसके आगे लेकिन what we write furthermore is like, for example, if you want to write a problem solution essay, then we write that this essay tends to analyze the reason and then ameliorate the problem in certain ways or solutions. वो कोई So नहीं that is बोलेगा, वो तो जनरल फैक्ट होगा प्रॉब्लम सोल्यूशन में। अनएम्प्लॉयमेंट okay. खराब हो रही है उसके, वो उसमें तो ये होगा नहीं अभी ना, देखना आप। Okay. ठीक है? Okay. Okay. किसी के Okay. कहने की Okay. प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हम पूछी जाएंगी, किसी फैक्ट की प्रॉब्लम अच्छा। सोल्यूशन पूछी जाएंगी। Yes, all right. तो मतलब थर्ड पर्सन में हो सकता है हाँ, basically. हो सकता है। Yes. Okay. Okay, ma'am. Thank उस you. टाइम, हाँ। On the one hand, the main reason why buildings need to have aesthetic appeal is that beauty in architecture brings joy and happiness is a fundamental human need. The emotional impact of beautiful buildings can improve the communities people live in. When buildings look good outside and feel good inside, the whole world of people is improved. Secondly, beautiful buildings also enhance the utility. For example, well-designed hospitals, ये मैंने वही वाला point है, ensure that patients are treated quickly. Well-designed schools create better learning environments, and workplaces with good architecture experience higher productivity. On the other hand, there are many reasons why a building should give importance to its functionality. Firstly, today's buildings need to address the burgeoning population, and the main purpose of building should be to accommodate more people in less space. In addition, a building meant for the elderly, such as an old age home, should have a lot of railings and slopes for their ease. For instance, if a 5-story old age home is made without elevators, it will fail to serve the very purpose for which it is designed. Finally, today's architects need to focus on green buildings, which means that the energy use and carbon footprints of the buildings need to be looked into. To summarize, the utility and aesthetic appeal of a building are equally important, and it is possible for architects to incorporate function and aesthetics both in their architectural design. अब ऐसे इजी लग रहा है आपको? जो पहले वाला मेरी बुक में ऐसे है, जिनके पास मेरी बुक है उसको बिल्कुल क्रॉस कर देना और उसकी जगह पे ये वाला लिख लेना। ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, what is carbon footprints? कार्बन फुटप्रिंट उसी को कहते हैं कि जो मतलब एनवायरनमेंट को जो नुकसान देती है तो उसका ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, दैट इज इट। ओके मैम ये कौन से वाली बुक है जो न्यू है? उसमें तो ये वाले एसेस नहीं है ना? है बेटे, हो ही नहीं सकता नहीं। हेलो ये बुक कैसे है? हेलो हाँ जी, हेलो। मैम जो न्यू बुक है उसमें मैम, तो 167 87 तक कैसे है ना? 180। जीटी की बुक की बात नहीं कर रही हूँ, जीटी के भी आएंगे इससे। ओके, ये क्या है? हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा था? हाँ जी, इसको समझा दो जो आपने अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है अभी? जो पैरे पढ़ाए है 2 बिल्डिंग वाले। वो आप लेट आए हो क्लास में? यस मैम।
आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना बेटे, बहुत ऐसे डिस्कस करने हैं, आज तो खत्म ही नहीं ओके होने, ठीक है? ओके ओके रिकॉर्डिंग ओके आपके पास अभी डल जाएगी, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट ऐसे, ये वाला ऐसे हो गया। नेक्स्ट ऐसे के पॉइंट्स हैं, some people say that vertical city is best where people live and work in tall buildings, others say that horizontal city is better where there are few tall buildings. Discuss both sides and give your opinion. Okay, अब ये जब ऐसे फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मेरा दिमाग घूम गया था कि ये क्या ऐसे आया है। वर्टिकल सिटी का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? वर्टिकल सिटी का कॉन्सेप्ट होता है एक सिटी जो नीचे से ऊपर तक जाती है, मतलब एक बड़ी सी सिटी है, वो फैली हुई नहीं है। मतलब आप सोच लो कि ये एक सिटी है, एक जैसे आप अपने घर को इमेजिन करो, ऊपर ऊपर जा रहा है। आपका ऑफिस जो है 100वें फ्लोर पे है, आपका पार्क जो है 60th फ्लोर पे है, आपका रेस्टोरेंट जो है वो 30th फ्लोर पे है। उस सिटी में सिटी ऊपर को बढ़ी हुई है, वर्टिकल सिटी है, वो सिटी है, वर्टिकल जा रही है, ठीक है? तो आप skyscrapers building. skyscraper is different, vertical city is different basically, पर यहाँ पे उन्होंने उस वे में नहीं लिया इसको, समझ गए? वर्टिकल सिटी का मैं अभी आपको दिखाती हूँ कॉन्सेप्ट। मेरी ना आवाज गूंज रही है किसी के पीछे से। ओके, Yes, ma'am, like China is building their vertical cities more these days. हाँ, चाइना वर्टिकल सिटी बना रहा है, तो मतलब सिटी ऊपर को जा रही है। यू गेट माई पॉइंट? मैं बच्चों को थोड़ा जनरल नॉलेज भी हो जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर को पूरा शहर ऊपर को, व्हाट डज वर्टिकल सिटी, ये तो सारे हाउसेस ही है, मतलब इनको वर्टिकल सिटीज बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में लिया गया जहाँ की सारी बिल्डिंग्स जो है ऐसी हैं। ये यहाँ पे इस हिस्से में ये कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली वर्टिकल सिटी का मतलब है जो सिटी पूरी जो है ऊंचाई पे जा रही है। जैसे ये आप समझ लो, can we take it as a skyscraper? हाँ, वो सिटी लो जिसमें ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स है। अब ये देखो, ये वर्टिकल सिटी, ये वाली फोटो आपको दिख रही है वाली? नाउ दिस इज वन सिटी, दिस इज अ वर्टिकल सिटी, ठीक है? ये मुकेश अंबानी का जो घर है एंटेलिया, वो इट्स जस्ट लाइक एन वर्टिकल सिटी। तो वर्टिकल सिटी, हाँ, ये बेसिकली वर्टिकल सिटी ये है जो ऊपर को उठ रही है। ये देखो, ये पूरी सिटी ऊपर को जा रही है, समझ गए? बट बेसिकली इन्होंने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लिया है, वो सिटी है जिसमें बहुत ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, ठीक है? तो ये इन्होंने उस वे में लिया है वर्टिकल सिटी को, ठीक है? अब जैसे ये वाली जो फिगर है, ये है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, मैम लाइक बुर्ज खलीफा, वो तो हाँ एग्जैक्टली, आई वाज गोइंग टू से प्रॉपर मैम, क्योंकि प्रॉपर एग्जांपल है उस चीज का मैम, उसमें सब कुछ है। हाँ, तो उस वे में है, ठीक है, वर्टिकल सिटी। पर इस ऐसे में इन्होंने वर्टिकल सिटी को लिया है उस कॉन्सेप्ट में कि ऐसी सिटी जिसमें सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, जिसमें सारे स्काई स्क्रेपर्स है। स्काई स्क्रेपर होती है गगन चुंबी इमारतें, ऐसी टॉल बिल्डिंग, ऐसा लगता है जो स्काई को किस कर रही है, इतनी ऊंची। यू गेट माई पॉइंट? स्काई स्क्रेपर, स्काई SKYSCRAPER, सिंगल P। स्काई स्क्रेपर्स होते हैं टॉल बिल्डिंग्स, वेरी टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है? तो ये एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल सिटी। कुछ लोग कहते हैं वर्टिकल सिटी बेटर है, बाकी लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिटी बेटर है। करने हैं, ओके, एंड यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, राइट? ओके, so advantages of vertical city. Firstly, vertical cities have environmental benefits as they help reduce air pollution. Having numerous services and amenities in these tall buildings would reduce the need for driving and thus reduce emissions associated with cars. तो naturally फिर driving कम करेंगे लोग, क्योंकि ऊपर नीचे ही जाना है, समझ गए, अपनी किसी जरूरत के लिए। And secondly, these buildings foster social connectedness by making it easier for individuals to socialize in common areas. अब देखो, ऐसी बिल्डिंग्स में जब लोग रहते हैं तो पूल है, वो सबका कॉमन है, नीचे स्विमिंग पूल बना है या कोई बैडमिंटन कोर्ट बना है, सबका कॉमन है,
तो ये हाई राइज अपार्टमेंट्स जो होते हैं इनके नीचे कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कॉमन होती हैं, तो फिर नेचुरली लोग फिर सोशली कनेक्टेड होंगे ज्यादा व्हेन दे विल अवेल दोस फैसिलिटीज. And these buildings also save energy as water supply, central heating and cooling, waste disposal are more efficient when done in small spaces. जब small spaces से कोई चीज करनी है तो ज्यादा efficiently हो जाती है. ठीक है, तो ये 3 points हैं जो advantages of vertical cities हैं. और जो horizontal cities वो होती है जिनमें जो spread है ना buildings का, वो horizontally होता है, वो ऊंचाई की तरफ नहीं होता, वो ज्यादा जगह घेरती हैं. Horizontal cities in which most buildings are low rise are safer than high rise buildings. For example, these buildings are better in case of natural calamities. अब जो horizontal जो छोटी buildings है जो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गई है, वो natural calamities होती है ना, जैसे earthquakes है, building fires हैं, उनमें वो safer होती है. ठीक है. And secondly, जो people horizontal cities में रहते हैं, they enjoy better quality of life because ऐसी buildings में वेंटिलेशन बेटर होती है, नेचुरल लाइट बेटर होती है, और हर एक के पास अपना इंडिविजुअल गार्डन होता है, ओपन बैकयार्ड होता है. ठीक है. फिर मैंने अपना व्यू दिया है कि हॉरिजॉन्टल सिटीज डेफिनेटली बेटर होती हैं, पर आज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अ वर्टिकल सिटी बिकॉज लैंड स्केर्सिटी इज देयर. ठीक है, land is scarce and to prevent the loss of farmland and allow green spaces for parks, vertical cities are the only realistic option. ठीक है, ये आप अब ऐसे ये लिख लोगे ऐसे, अगर आ गया तो पॉइंट्स आपके पास हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट ऐसे है, ये जीटी की बुक में ऐसे है. Many people think living in high-rise apartment blocks makes people feel lonely and unhappy, while others argue it has advantages. Discuss both views. अब ये ऐसे कह रहा है कि जो हाई अपार्टमेंट ब्लॉक्स में लोग रहते हैं वो लोनली है और वो अनहैप्पी हैं, और बाकी लोग कहते हैं कि हाई राइज अपार्टमेंट्स के तो फायदे बड़े हैं. अब आपने दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं. हाई राइज अपार्टमेंट्स के फायदे और नुकसान हैं. तो एडवांटेजेस ऑफ टॉल बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर्स, उनके एडवांटेजेस यही हैं कि ज्यादा लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, और अगर टॉल बिल्डिंग्स किसी शहर में बनेंगी तो उस शहर में नीचे जो जगह बच जाएगी उसमें पार्क्स बनेंगे, और जो पार्क्स हैं वो लंग्स ऑफ द कम्युनिटी है. व्हाट आर पार्क्स? दे आर लंग्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. वाटर सप्लाई, सेंट्रल हीटिंग, वो वही वाले पॉइंट्स है जो पिछले में बताए थे, वो मोर एफिशिएंट है. एंड टॉल बिल्डिंग्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड दे आर मोर अफोर्डेबल. आपको अगर घर खरीदना है, आप एक फ्लैट खरीदोगे, वो आपको सस्ता पड़ेगा अपार्टमेंट ब्लॉक में, रादर देन बाइंग अ हाउस ऑफ योर ओन लैंड का. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हाई राइज बिल्डिंग्स के मेनली ये है कि बहुत स्किल्ड आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स आर नीडेड. अब देखो 2, 3, 4, 5 स्टोरीज तक तो आम आर्किटेक्ट डिजाइन कर लेता है बिल्डिंग को, पर अगर आपने उससे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो यू नीड वेरी स्किल्ड आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स. आपको पता है जो 9/11 का जो हुआ था यूएस में, वो बिल्डिंग कैसे क्रम्बल हुई थी? बिल्कुल नीचे ऐसे, अगर टेढ़ी गिरती, आप सोच सकते हो कितना नुकसान होना था आसपास का. जब उसको एरोप्लेन ने स्ट्राइक किया, आपने कभी उसकी वीडियोस या फोटोज देखी होंगी, तो वो बिल्डिंग ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे क्रम्बल करके नीचे ही आई है, वो साइड सूट पे नहीं गिरी. ठीक है. तो ये वो एक उनमें आर्किटेक्ट का 2, 3, 4 आर्किटेक्ट्स ने मिलकर डिजाइन करी थी वो बिल्डिंग. एक आर्किटेक्ट इंडिया का था, कोलकाता का. उसने ये बात, उसकी इंटरव्यू में देख रही थी बाद में, कहता लोगों ने पता नहीं ये बात नोट करी कि नहीं, ये हमने क्या था पॉइंट कि अगर कल को कुछ होता है ये बिल्डिंग साइड में नहीं गिरेगी, ये ऊपर से नीचे ऐसे ही गिरेगी. मतलब ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी थॉट ऑफ बिफोर. तो उसके लिए हाईली स्किल्ड आर्किटेक्ट्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए. तो इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है जो हाई राइज बिल्डिंग्स है. ओके. टॉल बिल्डिंग्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द विंड फोर्सेस. विंड की फोर्स भी ऊपर ज्यादा होती है, उनको भी बियर करना है, तो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके. उसके बाद देखो, दे कैन ब्लॉक द व्यू एंड सनशाइन ऑफ द नेबरिंग बिल्डिंग्स. आसपास जो बिल्डिंग्स है उनकी सनशाइन, उनका व्यू सब ब्लॉक कर सकती हैं टॉल बिल्डिंग्स. ठीक है. The balcony is possible safety hazard because of a growing number of fatalities associated with suicide and accidental falls. Balcony से suicide cases भी होते हैं. What is more, high-rise fires are the worst nightmare for people living in tall apartment buildings because of the cramped conditions when doing an evacuation.
तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगर वहां पे कहीं आग उग लगे तो क्योंकि इवैक्यूएशन करनी पड़ती है, लोगों को एकदम निकालना है, तो और टाइट स्पेस हो जाती है, निकलने की जगह तो वही स्टेयर्स होती है या लिफ्ट होती है एक जगह से, तो वहां पे इवैक्यूएशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये उसके लिए भी अनसेफ हो गई। एंड फाइनली बहुत लोग क्योंकि रह रहे होते हैं ऐसे अपार्टमेंट ब्लॉक्स में, तो रेजिडेंट्स किसी स्ट्रेंजर की प्रेजेंस को क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए सिक्योरिटी कैन बी ए बिग प्रॉब्लम। पर आजकल ये हो गया है कि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक हैं वो बाहरी गेट पे अपना सिक्योरिटी वाला बिठा के रखते हैं, ठीक है, बट एनीवेज वो रखना पड़ता है मतलब। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, हाई राइज अपार्टमेंट ब्लॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये भी जीटी की बुक ऐसे है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ हाउस एंड लिविंग इन एन अपार्टमेंट एंड गिव योर ओपिनियन एज टू विच इज बेटर। तो हाउस की क्या एडवांटेजेस हैं? देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पीस एंड क्वाइट if people live in a house, ठीक है। Other significant advantages are that houses are more spacious and on the whole have gardens, ठीक है। अब आपको ये पहले वाला पॉइंट समझ आया कि हाउसेस क्वाइट एंड पीस का ज्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे देते हैं? यस मैम। आप अगर कभी फ्लैट्स वगैरह में रहे हो, अभी इंडिया में तो चलो फिर भी ब्रिक के हाउसेस हैं और कंक्रीट की छतें हैं। बाहर में जब मेरी बेटी बाहर थी तो वो अपार्टमेंट में थी जिसमें, तो ऊपर वाले बिल्डिंग में उनके 2 बच्चे थे छोटे, वो घर में चलते भी थे ना तो नीचे सोना मुश्किल हो जाता था, ठक ठक बड़ी आवाज आती है। यस। तो जो बच्चे कनाडा वगैरह में हैं हमारे, उनको ये प्रॉब्लम उन्होंने शायद फेस करी हो अगर अपार्टमेंट ब्लॉक में है, कि आवाज, क्योंकि वुडन हाउसेस हैं, आवाज बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होती है। ओके, यस मैम, वो ऊपर है मेरे ना, हाँ ठीक है, तो वो चलता है ना, तो कहाँ कहाँ पैर रखता मुझे फील पता चलता है सारा वहाँ, ठीक है। तो पीस एंड क्वाइट घर में ज्यादा है देन इन एन अपार्टमेंट, एंड सेकेंडली स्पेशियस ज्यादा होता है। घर का डिसएडवांटेज क्या है? ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा है कि जो सिटीज में घर कम है तो कंट्री साइड में ज्यादा होते हैं हाउसेस ऐसे, तो फिर अर्बन लाइफ आपसे दूर हो जाती है। अगर आपको बड़ा घर में रहना है तो आप ना आउट ऑफ द सिटी लोगे प्लॉट और फिर वहां बनाओगे। शहर के अंदर घरों की स्पेस अब बची नहीं है, तो हाउसेस जो हैं फिर आपको बाहर लेने पड़ेंगे, तो आउटस्कर्ट्स में, सबर्ब्स में या कंट्री साइड में, तो थोड़ा सा आप अर्बन लाइफ से दूर हो जाओगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ अपार्टमेंट्स क्या है? अपार्टमेंट में ये है कि बहुत लोग होते हैं, तो आपको कोई ना कोई इमरजेंसी पड़े तो हेल्प करने वाले बहुत आ जाते हैं एकदम। और दूसरा है कि इसकी ना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। और ऐसे कि क्योंकि अगर आपका घर है, अगर बाहर की कंट्रीज में एक्चुअली ये पॉइंट ज्यादा समझ आएंगे, और आपके बाहर लॉन है या बाहर घास लगी हुई है, अगर आपने उसको टाइम टू टाइम घास को मो नहीं करा तो आपको पता है फाइन लगता है बहुत ज्यादा तगड़ा। कुछ बच्चे जो बाहर है उनको शायद आइडिया हो इस बात का कि घास का है ना, हाँ। और यहाँ बैल्कनी और अपार्टमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपका ऐसे कोई चार्जेस नहीं है मेंटेनेंस के, ठीक है। और जो फ्लैट, हाँ, many of the houses they have written like that. I mean, if you see Airbnb and all, they usually write that walk softly or walk slowly. कि नीचे कोई रह रहा है, ऊपर कोई रह रहा है, ऐसे typically you know they put those hoardings. हाँ, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेजेस उनके क्या है? नेबर्स नॉइजी हो सकते हैं, बॉदरसम हो सकते हैं, और स्लीप भी इंटरप्ट हो सकती है। फिर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है। आजकल क्या है कि एक एक घर में एक से ज्यादा गाड़ी है, और पार्किंग उन्होंने एक अपार्टमेंट के हिसाब, अपार्टमेंट ब्लॉक में जितने फ्लैट्स हैं उनको एक एक गाड़ी की पार्किंग की जगह दी है। गाड़ी के पार्किंग की बड़ी बिग प्रॉब्लम आ जाती है अपार्टमेंट, इसकी वजह से झगड़े भी होते हैं लोगों के, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया पॉइंट सारे? मैम, पेट डॉग्स आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन अपार्टमेंट। हाँ, पेट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें अलाउड होते हैं, नहीं तो अलाउड नहीं होते। हाँ, यस मैम। हाँ, ये है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब घर में तो आप जितने मर्जी पेट्स रख लो, ठीक है। अब मैंने 2 रखे हुए हैं, अब अपार्टमेंट होता तो फिर अपार्टमेंट्स में थोड़ा मुश्किल हो जाती है पेट्स को रखना, थोड़ी जगह छोटी है। अब मेरी तो ब्रीड छोटी है,
अदरवाइज पेट्स रखने की अपार्टमेंट्स में तो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ओके, सो नाउ देयर आर 4 essays नेक्स्ट, और इनके पॉइंट सारे मैं इकट्ठे कराऊंगी आपको. Just read these essays and translate them, and you will see that they'll be quite similar to each other. That is why I've grouped them together. Some people believe that the government should spend on new public buildings such as libraries and museums rather than renovating old buildings. To what extent do you agree or disagree? अब ये ऐसे कह रहा है कि गवर्नमेंट को नई पब्लिक बिल्डिंग्स जो है नई बिल्डिंग्स बनानी चाहिए rather than renovating old. अब such as को इग्नोर करोगे तो आपको लगेगा बाकी भी ऐसे काफी सिमिलर है. दूसरा ऐसे है the restoration of old buildings in major cities in the world involves a lot of government expenditure. This money should be used in new housing and road development. तो ये भी ऐसे वही कह रहा ना कि नई houses बनाओ, नई roads बनाओ rather than renovating old buildings. ठीक है. अगला ऐसे है, some people think that too much money has been spent looking after and repairing old buildings, so we should knock down old buildings and build modern ones instead. ये भी आपको समझ आ रही है कि वही वाले ideas चलेंगे? Just yes ma'am. Yes, present करना है. Next essay is, some people believe that old public buildings in cities should be restored, while others say that they should be demolished and new buildings should be built instead. Discuss both views and give your opinion. तो ये आपको समझ आ गया? ऐसे सेम है चारों. Yes ma'am. Ideas Yes ma'am. ठीक है. अब ऐसे कंपाइल करा है कल मैंने बैठ के. It really took me, you won't believe it. I sat down at around 10 AM and I was up at around 9 PM तक मैं अपने टेबल पे ही थी, बीच में बस a few minutes here and there for something or the other, and I finished it finally. मुझे था मैंने कल ये क्लास करानी, because मुझे लगता था 7-8 ऐसे हैं. When I started compiling, I said, oh my god, ये तो काफी हैं. तो अच्छा है ना, आपके सारे ऐसे in one go हो जाएंगे आज, and you read them, you will get that contentment in your mind that you've done the buildings and architecture essays and they are important. अभी मैंने उस दिन guest work में निकाले हैं, right? Yes ma'am. जब मैं करा रही थी फॉलो अप्स तो मैंने कहा था बिल्डिंग आर्किटेक्चर वाले सारे एसेस कर लेना. दे आर ऑल गेस्ट वर्क. ठीक है. अब देखो, अब न्यू बिल्डिंग्स क्यों बनानी चाहिए उसकी 4 आर्ग्यूमेंट्स देख लो. सबसे पहला, देयर आर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ बेनिफिट्स. न्यू बिल्डिंग्स आर built using green methods in design and construction consume less energy. तो ग्रीन मेथड का आप तो मीनिंग आपको समझ आ रहा है, जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स हैं वो लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कंजर्व वाटर, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड जनरेट लेस वेस्ट. द इम्प्रूव्ड इंडोर एयर क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर पीपल्स हेल्थ. जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, उनमें मैं साथ में दूसरा ऐसे भी खोलती हूँ. पहले ये पॉइंट्स कर लो, देन आई विल ओपन दिस ऐसे आल्सो. It is more simple, beneficial and cheaper to build new buildings instead of preserving the old ones. Renovation can be a lot more complicated and expensive than just building from scratch. कई बार ऐसी बात होती है कि आप renovate करते हो वो ज्यादा महंगी पड़ जाती है, और from scratch आप शुरू से नई बनाओ वो सस्ती पड़ जाती है. ठीक है. Finally, due to increasing natural disasters, many countries have come up with very strict building codes. For some old or outdated existing buildings, it may be impossible to bring the entire building up to the current code. For example, flood prone areas जहाँ पे floods ज्यादा आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आजकल अब जो buildings बन रही हैं उनको जमीन से इतनी ऊंचाई पे बनाना है. अब पुरानी building को इतनी ऊंचाई तक उठाना impossible है. It's not feasible. अभी तो methods आ गए हैं कि पूरी building को ही उठा लेते हैं जमीन से. आपने अभी वो नई मूवी देखी सरदार का ग्रैंडसन ऑफ सरदार, कुछ ऐसे है मूवी. Yes. सन ऑफ सरदार मैम. सन ऑफ सरदार है कि ग्रैंडसन ऑफ सरदार है? ग्रैंडसन आया हुआ है मैम, ये अर्जुन कपूर वाला. अर्जुन कपूर वाली बोल रहे हैं ना? हाँ, अर्जुन कपूर. घर, पाकिस्तान का पूरा घर 70 साल पुराना. He brings to, because दादी को वीजा नहीं मिलता, वो घर ही उठा लाता है. कि दादी की इच्छा है कि वो घर देखे, तो चलो घर उठा लाता है. तो सरदार का ग्रैंडसन है. ग्रैंडसन है वो, वही तो मैंने कहा, मैंने मूवी देखी, वो ग्रैंडसन है, सन नहीं है, ग्रैंडसन है. ठीक है. एंड सरदार इज द नेम ऑफ दादी. शी इज सरदार कौर. दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट. ओके, तो ये जो है सब, ये मैं अभी ऐसे दिखाऊंगी. तो ये कोड, बिल्डिंग कोड का है. फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिस्टोरिंग ओल्ड बिल्डिंग्स, जो मैंने अपना ऐसे बनाया ना, मैंने तो यही नई बिल्डिंग्स के फेवर में 3 पैरे ये वाले बनाए हैं.
ठीक है, पर अगर आपको आ जाए कि रिस्टोर करने के लिए आप लिखना चाहो तो फिर ये पॉइंट्स देना, आप लिखोगे देयर आर सम ओल्ड बिल्डिंग्स व्हिच गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू अ प्लेस and with a little maintenance can be used effectively even today. For example, मैंने example डाली है सैनिक स्कूल ऑफ कपूरथला. It was a home of महाराजा ऑफ कपूरथला जगतजीत सिंह, और अब उसमें सैनिक स्कूल है. ठीक है, ऐसे ही लायलपुर खालसा कॉलेज है अमृतसर में, बहुत अच्छा वो भी घर था किसी का. ऐसे ही जोधपुर में उमेद भवन पैलेस है जो कि एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और बहुत गुड सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, मैं वहां गई थी 95 में. 95 में कोई कॉन्फ्रेंस थी हमारी, सर्जिकल कॉन्फ्रेंस, और उमेद भवन पैलेस देखने गए. तो बड़ी पुरानी बात हो गई अब तो. 350 रुपए की एंट्री थी, उसमें एक कॉफी का कप फ्री था उस पैलेस को देखने के लिए अंदर से. तो तब ये हालात थे कि हमने कहा कि बाहर से ठीक है, बहुत अच्छा व्यू है, कॉफी बहुत महंगी है भाई. वहां बाहर पार्क में बैठ के उसका सारा चक्कर लगा के आ गए थे. I didn't go inside because I found it very expensive then at that time. तो मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि वो अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहा है, और एक नाइट का वो स्वीट अंदर बुक करते हो एक नाइट के लिए 30,000 थे तब. अब का मुझे नहीं पता. तब हमें पता चला था कि यहाँ पे जो कोई रहता है तो एक नाइट के 30,000 है. हमारे कई डॉक्टर्स थे जो बड़े एडमेंट हो गए कि हमें तो उमेद भवन पैलेस में ही रहना है. उमेद भवन पैलेस फुल हो गया तो उनको बाहर टेंट लगा दिए उन्होंने कि आ जाओ फिर पैलेस में, ये टेंट में रह लो. और टेंट में वो रहे 3,000 रुपए रोज का देके 95 में. ठीक है, तो that was about the उमेद भवन पैलेस. You must have heard of that, but you can give examples like that. अगर आपके पास कोई और है वो भी दे सकते हो. ठीक है, अब मैं ये ऐसे खोलने लगी हूँ and I'll tell you how I have handled ये तीनों पॉइंट से एक पैराग्राफ. Okay, this is it. ये वाला ही है. Okay, some people believe that government should spend on new buildings. Okay, तो ये new buildings क्यों बनानी चाहिए, इसको मैं expand करती हूँ. Introduction है. It is believed by some that government resources should be spent on constructing new public buildings rather than restoring the old ones. I believe that there are numerous benefits of developing new buildings from scratch, and following this direction is justified. The main reason the government needs to spend on constructing new buildings rather than renovating older ones is the environmental and health benefits. Old buildings produce a vast amount of emissions and waste that has a negative effect on human and ecological health. By contrast, new buildings built using green methods in design and construction consume less energy, conserve water, lower greenhouse gas emissions, and generate less waste. The improved indoor air quality and environment is also beneficial for people's health. Secondly, renovation can be a lot more complicated and expensive than just building from scratch. It is much easier to design a building with a specific purpose in mind than to convert a building intended for a different use. अब जैसे आपने सैनिक स्कूल को कन्वर्ट करा फॉर ए स्कूल, बेसिकली तो वो पैलेस था ना, अब उसको स्कूल में कन्वर्ट करा तो काफी चेंजेस अंदर ही अंदर, कमरे डिफरेंट करने पड़े होंगे एक जैसे कमरे लाने के लिए, तो पर्पस डिफरेंट है तो उसके लिए काफी रेनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है. फिर लिखा है रेनोवेशन इज एक्सपेंसिव as some of the materials used in traditional buildings like marble and stone are much more costlier than currently used materials like concrete and reinforced steel in modern buildings. New buildings would also require less maintenance and thus save money in the long term as well. Finally, due to increasing natural disasters, many countries have come up with very strict building codes. For some older, outdated existing buildings, it may be impossible to bring the entire building up to the current code. For example, flood-prone areas require buildings to be elevated, but for some old buildings, it is not feasible. To sum up, I believe that building new buildings is cheaper, simpler, and more environment-friendly than restoring old ones, and the government should take that direction. ठीक है, समझ आ गया इससे? Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो. Ma'am, how this old building is responsible for emission of greenhouse emission? I didn't understood, ma'am. You didn't understand that? Okay. Greenhouse emission, ma'am. How it is responsible? Old building, carbon dioxide emission. How it is possible?
ये ना अब ये जो पॉइंट्स हैं ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये लिए हैं इंद्रुप ने लिखा ये ऐसे. So we can just Google it and see that how old buildings are emit more, you know, greenhouse gas. वुड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था पुराने बिल्डिंग्स के अंदर. Because है उनके तो जो फैक्ट वो है, होते इसमें कोई थे. गलत नहीं है पॉइंट. हाँ, ये फैक्चुअल है. आपके जो मैम वो थे बिकॉज छत उसमें जो थे उनका वो भी वुड वगैरह से होते थे. तो यू आर ट्राइंग टू कट डाउन मोर ऑफ वुड्स एंड दैट इज नो कंट्रीब्यूटिंग टू द CO2 emission somewhere. No, Maybe if that we is are the reason. burning wood, then only greenhouse carbon dioxide will be emitted, no? नो उसका मेन रीजन ये था कि जो नई बिल्डिंग्स होती है उसमें एसीज होता है, एसीज का यूज करना पड़ता है, बहुत सी चीजों का यूज करना पड़ता है जिससे हार्मफुल गैसेस प्रोवाइड मतलब निकलती है. और पुराने मकानों में किस तरह का कोई भी चीजों का यूज नहीं करना पड़ता नहीं, था. ऑपोजिट लिखा हुआ है. उसने लिखा है पुरानी बिल्डिंग्स में से ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं. हाउ डू बिल्डिंग्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? मैम स्क्रीन शो नहीं कर रही है. शो हो रही है अब स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम, हाँ? अब शो. ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ 2 ਮੈਚ ਹੋਰ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ. ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ. ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ. 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ. Mute all. Okay. How do old buildings? How do old buildings? What is the carbon footprint of a building? यही main चीज है यही. Well, I know that this is a fact. He's taken a fact, but abhi isko time lag jayega. So I'll find it out the answer to that nicely and I'll share later on. Chalega? Okay, ma'am. So मुझे लग रहा है जिन्होंने अभी वो एयर कंडीशन और उसका बताया, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. वो तो फिर opposite हो गया ना, opposite to this point. Exactly, So exactly. That's what I was going to say. That see, new buildings में जो less of old buildings, they generate more of the, you know. मैम मैं सोचती हूँ कि शायद कुकिंग पर्पस के लिए वुड जलाते हैं ओल्ड बिल्डिंग में, तो मे बी फॉर दैट रीजन. So whatever the reason, but there is some reason which is surely there, and because that I am sure that he will not put up anything in the essay which is not correct. Okay. So this is because वो CFCs वाला फंडा, that makes more sense. तो CFC तो अब नहीं है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स में थी. अब तो जितने भी अभी गैजेट्स सारे उनमें नहीं है, तो ओल्ड बिल्डिंग ज्यादा जनरेट करती है ना. फिर उस वे में आप CFC वाला पॉइंट डालो तो यही डाल सकते हो कि ओल्ड बिल्डिंग्स में ऐसे गैजेट्स थे जिनमें CFC एमिशंस थी. That way you can. Exactly. Then we can justify what sir has written. क्योंकि अभी तो वो CFC3 वगैरह मतलब it is more ecologically sound, but फिर उसके लिए डाल सकते. Maybe that is the reason. Not sure. तो मैं कंफर्म करा दूंगी आपको. ठीक है? Because if he has put it, that is correct. That I am sure. ठीक है? Ma'am, I have one doubt. हाँ जी. आपने जो ये लास्ट वाला जो लाइन लिखा है इसमें to sum up, okay? तो मैम if I have to write this with a concession,
like you have written, I believe that some buildings are cheaper and more environment friendly. Therefore, government should take that direction. If I want to write it with a concession, कि मैं दोनों भी चीजों से कुछ हद तक agree करती हूँ कि यहाँ पे ये, तो इस sentence को किस तरीके से लिखा जाएगा? आप लिख सकते हो that some old buildings which have मैंने किसी ऐसे में concession दिया हुआ है that some old buildings which give identity to a place or can fetch tourism should be restored at all cost, but all other old buildings should be demolished and new ones made. Okay, all right. फिर वो वाइल हो गया ना, भी कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स को रिस्टोर करो, सबको नहीं करो रिस्टोर, सबकी रिस्टोरेशन इज बैड, ठीक है? ओनली दोज ओल्ड बिल्डिंग्स व्हिच गिव आइडेंटिटी टू अ प्लेस और व्हिच कैन फेच टूरिज्म, they should be preserved. Rest all should be demolished and new ones should be made in their place. ठीक है? Yes, तो मैंने किसी और ऐसे में ऐसा कंसेशन देके लिखा हुआ है ऐसे. ठीक है? All right. Yes. Thank you. Okay. Then we go to the next essay के points देखते हैं. Essay ideas. Okay. This is the file. Then okay. Next essay है, some people believe that living in big cities is becoming more difficult. Others believe that it is getting easier. Discuss both views and give your own opinion. ठीक है? अब बिग सिटीज में रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, और बाकी लोग कह रहे हैं कि आसान होता जा रहा है दिन प्रतिदिन. दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन देना है. ठीक है? अब किन वेज में बड़े शहरों में लाइफ आसान हो रही है और किन वेज में बड़े शहरों में लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, वो पॉइंट्स हैं. अब बड़े शहरों में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो रहे हैं दिन प्रतिदिन. मेट्रो आ गई है, ट्रेन जैसे हैं, ठीक है, बेटर वाईफाई है, बेटर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज है, ठीक है. एंड फिर बड़े बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं जो नए खुले हैं, सिनेमास, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स. तो ये लाइफ बेटर करने वाली बातें आप ऐसे लिख सकते हो एक पैरे में. क्यों लोग कहते हैं कि जिंदगी बड़े शहरों में आसान होती जा रही है और क्यों डिफिकल्ट होती जा रही है, आप लिख सकते हो कि बेंगलोर में है आप में कोई बेंगलोर में रहता है, हमारे ग्रुप में इतना बड़ा ग्रुप है, आपको पता है इट्स ए सिटी ऑफ ट्रैफिक जैम्स, उसको कहते हैं इट्स ए सिटी ऑफ ट्रैफिक जैम्स. आपको 20 किलोमीटर जाना है तो 50 मिनट लग सकते हैं, ठीक है. और हमारा जो छोटा टाउन है यहाँ पे 20 किलोमीटर जाना है तो हम 15, 16, 17 मिनट में चले जाते हैं 20 किलोमीटर, ठीक है. तो ये बड़े शहरों में डिफिकल्ट इस वे में हो रही है कि ट्रैफिक जैम्स बढ़ रहे हैं, सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंजेशन बढ़ रही है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स. दिल्ली में आप दिल्ली जाओ, अगर आप जैसे हम छोटे टाउन में मैं रहती हूँ, अगर मैं दिल्ली जाऊं तो मेरी आंखें जलने लग जाती हैं. और वहां जो लोग रहते हैं वो उस एटमॉस्फेयर को यूज्ड टू है, वहां से वापस आके चैन की सांस आती है कि ओह निकल आए वहां से, पता नहीं लोग रहते कैसे हैं वहां. ये सोचती हूँ मैं कई बार. वो डिफिकल्ट हो रही है ना वहां पे लाइफ इन केसेस में, एयर क्वालिटी पुअर हो रही है, ठीक है. और हाउसिंग ज्यादा महंगी हो गई, किराए बहुत हैं. अब मेरा बेटा वहां एक कमरे को किराए पे लेके रहा था, जस्ट 1 रूम व्हेन ही वाज टू प्रिपेयर फॉर हिज यूपीएससी, एंड 20,000 महीने का किराया था एक रूम का. और यहाँ पे बड़ा सा आलीशान घर 20,000 महीने पे मिल जाता है छोटे टाउन में. तो वो वहाँ कॉस्टली हो रही है, एयर क्वालिटी पुअर हो रही है, और फिर क्राइम रेट भी बड़े शहरों में ज्यादा हो रहा है. तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हो. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई ओवर देयर. हाँ, वही वो पॉइंट है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है. तो ये वाले पॉइंट्स आप, ये इजी पॉइंट्स है, आप पढ़ोगे आपको आ जाएंगे, ऐसे में डल जाएंगे, ठीक है. और मेरा व्यू है कि लाइफ इजी हो रही है, और फिर इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने और भी बड़े स्टेप्स लिए हैं कि और इजी हो रही है. जैसे क्राइम के लिए मैंने पॉइंट डाल दिया कि जगह जगह सर्विलेंस कैमरास लग गए हैं, ठीक है. फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बने वहां पे. तो LIG MIG फ्लैट्स बने हैं, और बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं. तो बेटर वो उस चीज में भी गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं. तो लाइफ बेटर हो रही है, मैंने वो बोला है. और डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए ऊपर वाले पॉइंट्स, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज, ये फाइल दिख रही है ना आपको?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. In many countries, the quality of life in large cities is becoming worse. What causes this problem? What measures can be taken to solve? तो ये वाले ऊपर वाले points में से आपको पता चल जाएगा quality life की क्यों worse हो रही है और क्या measures लिए जा सकते हैं, वो भी मैंने ऊपर लिखे हैं. ये वहां जाना चाहिए, इससे इसके points वहीं पे हो गए. ठीक है. Some people think the standard of living only benefits cities more than rural areas. कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अगर कुछ इंप्रूव होता है तो सिटीज में ज्यादा उसके फायदे हैं देन रूरल एरियाज. इससे क्या सिचुएशंस, इससे इस सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगी आप बता सकते हो? अगर सिर्फ शहरों में इंप्रूवमेंट आए और विलेजेस में ना आए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पॉपुलेशन. मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. हाँ, ये क्वेश्चन समझो. देखो, Some people will prefer to move to the cities. जब गवर्नमेंट कोई भी इम्प्रूवमेंट्स करती है, कोई भी प्रोग्रेस करती है, तो शहरों में ज्यादा प्रोग्रेस होती है, विलेजेस में उसके हिसाब से बहुत कम प्रोग्रेस होती है. ये बात सही है, फैक्ट है. Yes, ma'am. अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो पूछिए. प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है? सबसे पहली प्रॉब्लम अराइज हो रही है Overcrowded society. अर्बनाइजेशन क्या होता है? गाँव से शहरों को लोग moving भागे जा to रहे हैं. cities. हाँ, ठीक है. और उसके साथ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? ठीक है. और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ये वाला ऐसे है. फिर अगला है, an increasing number of people choose to live in big cities. What problems will this bring about? Should the government encourage people to live in small towns? तो इसके लिए वही है कि स्मॉल टाउन्स में, अगर मैंने ये लिखा है कि स्मॉल टाउन्स में अगर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी लोगों को रहना, तो उस स्मॉल टाउन्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी और बड़े शहरों में नुकसान हो जाएगा उसका. ठीक है. ये मैंने करे हैं इसके, ये सारे आगे पॉइंट्स करे हैं. सारे पहले एसेस पढ़ लो, फिर इनके पॉइंट्स पे आ रहे हैं. ठीक है. As transportation and accommodation problems are increasing in many cities, some governments are encouraging businesses to move to rural areas. वो कह रहे हैं businesses को rural areas में भेज दो. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? The movement of people from agricultural areas to cities to work can cause serious problems in both places. What are the serious problems and what measures can be taken to solve this problem? The major cities in the world are growing fast as well as their problems. What are the problems that young people living in cities are facing? Give solutions. अब young people के लिए focus करना है, उनको क्या problems आ रही है शहरों में. ठीक है. अगला है, young people are leaving their homes in the rural areas to go and work in the cities. Why do they do so? What are the consequences? How to solve the problem? तो ये सारे essays हैं, इनमें overlapping points हैं. सब points मैं आपको इकट्ठे करा रही हूँ. तो ये सारे एसेस में आपने अपनी इंटेलिजेंस से पिक एंड चूज करने हैं पॉइंट्स, कौन से पॉइंट किस एसे में जाने हैं. ठीक है. ये समझ आ रही है आपको बात? ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दोगे किसी एसे में. ऐसे टॉपिक समझना एंड पिक एंड चूज कर लेना कौन से आइडियाज आएंगे. ठीक है. Causes of declining quality of life in cities. The most common cause of declining life quality in many cities is environmental pollution. Increasing traffic has led to poor air quality, which is detrimental to the health of city dwellers. And ये पहले भी लिखे हुए हैं, larger cities में greater crime rate है and no longer affordable है. ठीक है. अब solutions क्या हैं? Public transport improve करो. बाइसिकल्स को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट्स को. इसमें आप डेनमार्क की एग्जांपल दे सकते हो. डेनमार्क में 19,000 किलोमीटर्स, अभी मेरे को कोई स्टूडेंट बता रही थी, डेनमार्क से ही थी वो स्टूडेंट, 1-2 महीने पहले शी वाज हियर विद अस. तो वो बता रही थी कि अब 19,000 नहीं है, अब 26,000 किलोमीटर्स ऑफ बाइसिकल ट्रैक्स हो चुके हैं डेनमार्क में. गवर्नमेंट बनाई जा रही है. अब इतने बाइसिकल ट्रैक्स होंगे एंड पीपल आर मोटिवेटेड टू गो आउट ऑन बाइसिकल्स. एंड कारें कम हो गई हैं यूज होनी. एक्सीडेंट्स 400% कम हो गए. एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो गई है गवर्नमेंट के एक स्टेप से कि बाइसिकल लेन्स गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि साइकिलिंग लोगों को सेफर हो जाए. अदरवाइज तो आपको पता है ना कि ट्रक के नीचे मारुति कार आती है जो बेसिक मारुति 800, तो उसको कहते हैं साबुनदानी आ गई, ये कहाँ से आ गई. और स्कूटर आ जाए तो मच्छर. तो साइकिल वाला तो बेचारा पता नहीं क्या होएगा. ठीक है. तो cycling is not, bicycling is not safe here, but if bicycling is made safe, many people would come out on bicycles. ठीक है. At least young people would. ठीक है.
और फिर बाकी सर्वेलेंस कैमरास की बात कर लो, पॉपुलेशन कंट्रोल, सिटीज की अर्बनाइजेशन को चेक करने के लिए विलेजेस और सिटीज की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी कर दी जाए, ताकि लोग शाम को रहने अपने घर में जाए और सिर्फ काम के लिए शहर आए, शहर परमानेंटली मूव ना होए। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हैं। देन प्रॉब्लम्स जो सिटीज में अर्बनाइजेशन की वजह से आ रही हैं, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर आ रहा है। जैसे देखो वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, ये सारी चीजें जो है इनमें, क्योंकि व्हाट इज मेंट फॉर अ फ्यू पीपल, उसमें अगर अब जैसे हमारा घर है, अगर हमने इसमें 2 बेडरूम है तो 4 जने रह सकते हैं अच्छे से। अगर हम इसमें 20 जने घुसेड़ देंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी ना, बाथरूम के बाहर भी क्यू लगने लग जाएगी। तो वही प्रेशर ऑन द सिटीज रिसोर्सेज, उस वे में समझो आप पॉइंट, कि पूरा शहर उसमें वो अकोमोडेट कर सकता है 1 लाख, पर वहां पॉपुलेशन हो गई है 4 लाख, तो मुश्किल आएगी ना शहर को, रिसोर्सेज को, वाटर सप्लाई को, सीवेज डिस्पोजल को। तो ये सारा इसका ये मतलब है। द अर्बनाइजेशन से व्हीकल्स भी बढ़ रही हैं, और व्हीकल्स बढ़ने से एयर क्वालिटी और कंजेशन ये सब बढ़ रहा है। और अर्बनाइजेशन से यंग पीपल को क्या नुकसान हो रहा है वो मैंने यहाँ डालना भूल गई हूँ। यंग पीपल को ना कंपटीशन एट जॉब बढ़ रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, वो बढ़ रही है। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मिस हो गया, आगे शायद कहीं आ गया होगा। ठीक है, ओके। फिर विलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? विलेजेस में यंग पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चरल लेबर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। और वहां की डेमोग्राफी क्या होती है पता है आपको? डेमोग्राफी, ये वर्ड आप डाल, कोई जना अपनी जनसंख्या कर रहा है, वोकैबुलरी की फाइल बन रही है किसी की? यस मैम। ओके, तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जनसंख्या। नो, दैट इज, जनसंख्या इज डिफरेंट, वो पार्ट ऑफ डेमोग्राफी है। ठीक है, पर पूरी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कितने ओल्ड पीपल है, कितने यंग पीपल है, स्टडी ऑफ रिलीजन, everything, एज, demographic, everything. Okay, it is that study of population, not just the count of the people. You get my point? Yeah. So उसमें क्या है कि ओल्ड पीपल सिर्फ वहां रह गए, यंग पीपल सारे वहां से मूव कर गए, अब ओल्ड पीपल डिप्रेशन और आइसोलेशन में चले जाते हैं वहां पे। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम जो विलेजेस में आ रही है। और फिर ऐसे है, इज एनकरेजिंग पीपल टू लिव इन टाउन्स द बेस्ट सोल्यूशन? अब मैंने ये कहा है कि नो, ये बेस्ट क्या है, ये तो खराब सोल्यूशन है, इससे बेटर है और कोई सोल्यूशन लो, इसके तो नुकसान होंगे। अगर हम लोगों को सबको टाउन्स में भेज देंगे तो फिर जो शहर में बहुत से बिजनेसेस उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बिजनेसेस एकदम ब्रोक हो जाएंगे। ठीक है, और टाउन्स में नए वो बिजनेसेस सेटअप हो जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम शहर में आ रही थी टाउन में शहर बस जाएगा, तो टाउन में वही प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। बात वो, इट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन खराब है। और मैंने यही लिखा है कि रूरल एरियाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ गवर्नमेंट अगर इम्प्रूव करे, वहां पे अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हो, तो लोग शहरों में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर अनदर स्टेप वुड बी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज टू शिफ्ट देयर थ्रू टैक्स एंड अदर इंसेंटिव्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। फाइनली गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन लार्ज सिटीज एंड नेबरिंग विलेजेस so that people prefer to commute rather than migrate to cities. तो commute करना prefer करें, migrate करना ना prefer करें। अगर businesses को rural areas में move कर दिया जाए, उसके क्या फायदे होंगे? It can address the problems caused by excessive population density in cities such as high living cost. तो वो फायदे हो जाएंगे कि जो cities में बहुत सारी population density बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन है, वो सारी कम हो जाएगी अगर बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो रूरल एरिया में मूव हो जाए। और सेकेंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब रूरल एरियाज, अगर कोई बिजनेस रूरल एरिया में जाएगा तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, और बिजनेसेस को भी इसका फायदा होगा क्योंकि उनको कम कॉस्ट पे लेबर मिल जाएगी। ठीक है, और फिर एक और बिजनेस को ये फायदा होगा कि जो रॉ मटेरियल है ना, वो भी विलेजेस से पहले शहर को लाया जाता है, तो वो वहीं पे उनको पास में अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए उसकी भी उनकी कॉस्ट बचेगी। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी आएंगे अगर उनको मूव करो, तो ये वाले भी पॉइंट्स आप देख लेना। द मेन प्रॉब्लम वुड बी
that rural areas might not have enough population to support the businesses. And in other words, it might be difficult for businesses to survive in small areas, especially if there are already similar businesses in the area. Another potential issue that could arise is that businesses might find it hard to find skilled or technical labor in villages, and they might have to spend extra to attract labor to such areas. Point समझ आ रहे हैं जो मैंने लिखे हैं? थोड़ी मैं स्पीड ज्यादा कर दी है. अगर ज्यादा लग रही है, I can slow down. No, ma'am. It's Fine. समझ आ रही है. Okay. Yes, ma'am. अब ये हाउसिंग शॉर्टेज इन बिग सिटीज कैन कॉज सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज. अब बड़ी सिटीज में हाउसिंग शॉर्टेज तो चल ही रही है, इससे सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगी. और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है सिर्फ सरकार ही इनको सॉल्व कर सकती है. आप हाँ, इसके आप सहमत है कि नहीं? मैंने लिखा है कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है, पर साथ में लोग और रियल एस्टेट का भी बहुत योगदान है. अगर वो लोग भी करें तो सरकार को हेल्प हो जाएगी. मतलब मैंने एक तरह से एग्री करा है, पर मैंने थोड़ा ये कंसेशन दे दिया है कि रियल एस्टेट पीपल एंड द इंडिविजुअल्स शुड आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प द गवर्नमेंट इन दिस. बेसिकली तो सरकार ही कर सकती है. फिर मैंने रियल एस्टेट का ये किया कि वो गवर्नमेंट को नो हाउ दे सकते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग बनाने की. फिर गवर्नमेंट उनकी नो हाउ से, उनकी एक्सपर्टाइज को यूज करके लोगों को ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड कर सकती है. और लोग क्या कर सकते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट कोई हाउसिंग स्कीम निकाले तो लोग उसमें आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर सारा खर्चा सरकार अपने बलबूते पे करेगी तो बहुत ज्यादा सरकार पे बर्डन आ जाएगा. अगर लोग सरकार की इतनी हेल्प कर दें कि उसमें इन्वेस्ट कर दें. आपको पता है ना, जब कोई बड़े बड़े फ्लैट्स बनते हैं तो लोगों से फिर वो कहते हैं इन्वेस्ट करो, इनमें ले लो पहले ही, तो फिर लोग पैसा लगाते हैं. उस पैसे से फिर सरकार वो बना सकती है लोगों के लिए. तो लोगों का भी योगदान है, लोगों का भी योगदान है, और रियल एस्टेट वाले लोगों का भी योगदान है, और गवर्नमेंट का तो है ही है. बेसिकली मैंने एग्री करा है, पर साथ में मैंने बोला है कि इंडिविजुअल्स एंड द रियल एस्टेट सेक्टर कैन आल्सो डू. मैम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रधानमंत्री आवास योजना. हाँ बिल्कुल, आप डालना वो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें फिर लोगों ने इन्वेस्ट करा है ना. यस मैम, बहुत कुछ जो है जिनको 1 BHK 2 BHK मिला है उनको बहुत लो प्राइस में मिल चुका है मैम. हाँ देखो, ये आप इसका एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स डालो उसमें. गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, पर लोगों को भी उसमें योगदान देना है. अगर लोग आगे आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की स्कीम ठप हो जाएगी. ठीक है, देन गवर्नमेंट कैन नॉट गो हेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. ठीक है. Next is, in many cities, planners tend to arrange shops, schools, offices, and homes in specific areas and separate them from each other. Do you think the advantages of this policy outweigh the disadvantages? तो मैंने इस हफ्ते के लिए ना ये वाला जो essay है, do you think the advantages outweigh the disadvantages? मैं आपको ना ये कह रही हूँ कि आप इसकी introduction, conclusion, essays की पूरी एक इस हफ्ते इसको dedicate कर दो. Ideas तो आपको करने ही करने हैं, ये सारे बिल्डिंग आर्किटेक्चर एसेस के, पर आप ऐसे एसेस की इंट्रो कंक्लूजन पे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने कौन से एसे पे फोकस करा था, एग्री डिसएग्री, उससे पिछले हमने डिस्कस पे. ठीक है, तो दिस वीक यू फोकस ऑन दीज. ठीक है. अब इस चीज को कि एक ही साइड में सारे ऑफिसेज हैं, एक ही साइड में सारे स्कूल है, एक एरिया में सारी शॉप्स है, एक तरफ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, इसको लैंड जोनिंग कहते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? लैंड जोनिंग. लैंड जोनिंग के क्या फायदे हैं? इसका एक फायदा है कि रेजिडेंशियल एरियाज में शोर शराबा कम होगा, वो रेजिडेंशियल एरियाज होंगे. ठीक है. हाँ, और क्योंकि कोई भी बिजनेस है, शॉप्स है, उनके साथ हमेशा कोई लेवल ऑफ नॉइज एंड ट्रैफिक एसोसिएटेड रहता है. ठीक है. और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है रेजिडेंट्स की वो खराब रहती है. Get affected. Yes. आई टेल यू, जो हमारा पहला घर था जहाँ मेरा अभी हॉस्पिटल है, वो जो लेन, उसके आगे जो सड़क है ना, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए कमर्शियल लेन. अब उसको डिक्लेयर करने से पहले ही वहां पे हमारे हॉस्पिटल था, उसके साथ एक वो खुल गया रेस्ट हाउस टाइप, गेस्ट हाउस खुल गया, उसके साथ एक और हॉस्पिटल है, उसके इधर एक रेस्टोरेंट खुल गया, उसके उधर एक आइसक्रीम पार्लर खुल गया, सामने ब्यूटी सैलून खुल गया, उसके साथ में बैंक खुल गया. तो हमने 3-4 साल पहले वहां से शिफ्ट करा है. इन 3-4 सालों में ना वहाँ ये सब कुछ खुल गया है, और हम वहाँ इतने साल रहे हैं, और मैंने मतलब बहुत शोर होता था. वो मेन रोड थी एक तरह से, बसेस ट्रक सब निकलते हैं वहां से. तो नए घर में आके, हालांकि वहां से सिर्फ 4-5 मिनट्स की वॉक पे है,
2 महीने ना यहाँ आके नींद नहीं आई, क्योंकि शोर ही नहीं था। मतलब इतना यूज्ड हो गए थे ना कान शोर के, इतनी साइलेंस लगती थी, इतनी चुप्पी। ओ माय गॉड, इट वाज लाइक डेड एरिया में आ गए हैं। पर अब सोचते पता नहीं इतने साल वहां कैसे काटे, बहुत मुश्किल है बाहर रहना। पर अभी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है पिछले 3-4 सालों में, बहुत ही ज्यादा। हॉस्पिटल तो अभी भी वही है हमारा, आई सेंटर भी वही है, बट रेजिडेंस थैंकफुली वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर। तो Ma'am, वैसे हाँ, you become habitual of that. we had that become thing. so habitual of that noise, so Yes, ma'am. habitual कि अब वो मतलब वो एकदम से यहाँ आके ना बिल्कुल लगा कि बहुत शांति है, यहाँ पे शोर ही नहीं है। तो मतलब बिल्कुल इट वाज लाइक अ चेंज फ्रॉम दैट। Yes, yes. तो ये पहला हो गया पॉइंट कि रेजिडेंशियल एरियाज में फिर शोर कम होएगा। दूसरा है रेजिडेंशियल एरियाज की प्राइसेस कम होती हैं। रेजिडेंशियल, अब वो कमर्शियल लेन है ना, वहाँ प्रॉपर्टी के रेट एकदम इतने बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ रेजिडेंशियल एरिया कंपैरेटिवली उससे चीपर है। ये पॉइंट्स आपको दोनों समझ आ गए। अगर रेजिडेंशियल एरिया सेग्रीगेटेड रहेगा तो वहाँ आम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन। segregation allows local authorities to better manage parking and traffic, ठीक है। पार्किंग और ट्रैफिक भी बेटर मैनेज हो जाएगी। ड्रॉबैक्स क्या है कि कारों की जरूरत बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने पड़ेंगे कारों पे। चिल्ड्रन को भी रोज अपने स्कूल जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और फिर दूसरा मैंने कहा है कि जो अगर मिक्स्ड यूज हो लैंड का, तो उसमें वाइटैलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एरिया बढ़ जाती है, बिकॉज ज्यादा लोग होते हैं स्ट्रीट्स पे, तो हाउस रॉबरीज वगैरह ज्यादा होती है अगर सेग्रीगेटेड होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज, क्योंकि दिन में सब लोग काम पे चले जाते हैं, तो रेजिडेंशियल एरियाज मोस्टली खाली हो जाते हैं, तो वहाँ रॉबरीज और बर्गरीज के इंस्टेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस है। तो वाइल सेंटेंस क्या बनेगा? अमनप्रीत, व्हाट विल बी द वाइल सेंटेंस? अरबिना आप बनाओ। हाँ Yes. हाँ अमन आ गई, अमन बना ले। हाँ हाँ बनाओ, कोई भी जना बनाओ। हाँ While there are quite a few advantages of land zoning, then the disadvantages are their disadvantages can be ignored. नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना। आप लिखोगे while there are a few disadvantages of land zoning, the advantages are far more. देखो एडवांटेज आपके पास 3 है, डिसएडवांटेजेस 2 है। ठीक है, तो a few disadvantages हैं, एडवांटेजेस ज्यादा है, बस सिंपल है, ठीक है। While there are few disadvantages few of नहीं, a few लिखना, land, a few लिखना, a few, okay, not few. While there are a few disadvantages of land zoning, its perks are far more, or they are perks से better है, its advantages are far more, या its benefits are far more, ऐसे लिखो, ठीक है। its advantages, yeah, its benefits are far, yes. Okay, next essay है, in some cities there are few controls on the design, construction of homes, office buildings, and the owners can decide on the styles of their houses. Do the advantages outweigh the drawbacks? तो कई जगह पे ना, कुछ सिटीज में डिजाइन पे, कंस्ट्रक्शन पे, ऑफिसेस की, घरों की कंट्रोल ही नहीं है। फ्यू कंट्रोल का क्या मतलब है? कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब कंट्रोल ना होने का मतलब है फ्रीडम है, लोग जैसा मर्जी बनाए। क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है? अब मैंने नुकसानों के फायदे ज्यादा लिखे हैं, तो मेरा वाइल सेंटेंस क्या बनेगा? ट्राई करो। आकाश कहाँ है आज? आपने कैसे पुटअप करा है मैम ऐसे? मैंने डिसएडवांटेज, देखो मैंने ऐसे का टॉपिक है कि डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में ना कंट्रोल नहीं है कई सिटीज में। क्या ना कंट्रोल होने के फायदे नुकसानों से ज्यादा है, कंट्रोल नहीं होने के मतलब फ्रीडम होने के फायदे नुकसानों से ज्यादा है। तो कंट्रोल नहीं होने के
मैंने लिखा है कि कंट्रोल नहीं होने के नुकसान ज्यादा है. While there are a few advantages, very good, Hardik. advantages are While there are a few advantages of the freedom to build houses in any style, the disadvantages are far more. अब आप freedom के बोल दो कि advantages जो हैं वो थोड़े से है, पर disadvantage ज्यादा freedom. मतलब कंट्रोल होना चाहिए बेसिकली. कंट्रोल होने के फायदे ज्यादा है, फ्रीडम के नुकसान ज्यादा है. समझ गए बात को? आपको पूरी आजादी है, जैसे मर्जी करो, उसके नुकसान ज्यादा है. ठीक है, आप कंट्रोल है किसी चीज का कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, उसके फायदे ज्यादा. समझ गए? तो कंट्रोल होने के क्या फायदे हैं? यूनिफॉर्मिटी रहेगी कम्युनिटी की, और स्ट्रीट जो है अगर ट्रेडिशनली डिजाइंड हाउसेस हैं तो एक मॉडर्न हाउस उसकी एस्थेटिक खराब कर सकता है. पता है यूके में, इंग्लैंड में जो क्वीन का घर है जहाँ उस गली में हमारे कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ना, उनका घर बड़े पुराने स्टाइल का था, उन्होंने पता नहीं कितने £1000 लगा के उसको ऊपर से रेनोवेट करा लिया. अब वो सारा जो एस्थेटिक अपील के लिए पुराने घर है वहाँ ना चेंज करना अलाउड नहीं है, उनको पता नहीं था. तो वापस आए, उन्होंने पुराना जो स्टाइल था उनका दोबारा उनको बोला वही करवाओ. उनके उतने ही £1000 वापस लगे करवाने में, और ऊपर से कुछ पता नहीं कितने £1000 का फाइन लगा. तो उनका तो ये हुआ उनके साथ, एक ट्रेजेडी कह रहे थे, ट्रेजेडी हो गई कि इतना पैसा लगा के. अनडाउटेडली वो क्वीन के नेबरहुड में रहते तो they could afford that. उनको वापस करना था क्योंकि वो उस एरिया में उन्होंने पुराना स्टाइल जो है मेंटेन रखना था. ठीक है, ताकि लोगों टूरिज्म के लिए कि वहां से निकल के जाए, उनको पता चले कैसे घर थे पहले टाइम के. ओके, तो ये एडवांटेजेस रेगुलेशंस की क्या है? रेगुलेशंस होने के एडवांटेजेस क्या है? यूनिफॉर्मिटी वाला पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है, अगर रेगुलेशन नहीं होगी ना तो सेफ्टी लोगों की नहीं होगी, क्योंकि रेगुलेशन है, सपोजिंग वहां पे अर्थक्वेक है, आने की संभावना बहुत है किसी एरिया में, तो सरकार ने रेगुलेशन करी है कि घरों में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उनको वैसे बनवाने पड़ेंगे. अगर वो ऐसे नहीं बनवाएंगे तो सेफ्टी हैजर्ड हो जाएगा, लोगों को सेफ्टी हैजर्ड हो जाएगा. तीसरा है, अच्छा ऐसे एक रेगुलेशन सेफ्टी वाला पॉइंट, मुझे एक और एग्जांपल याद आ गया. आपको पता है अगर किसी ने बेसमेंट बनानी है और साथ वाले दोनों साइड पे घर बने हुए हैं, तो बेसमेंट में आपको साथ में ना 7-7 फुट एरिया छोड़ना पड़ता है साथ वाले घर का. अब मुझे ना ये चीज समझ नहीं थी कि ये क्यों छुड़वाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपने घर की बेसमेंट है, बंदा पूरी बना ले, कंप्लीट बेसमेंट. अगर दोनों साइड पे प्लॉट है तो आप कंप्लीट बेसमेंट बना सकते हो. अगर दोनों साइड पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं तो दोनों साइड से आपको 7-7 के ज्यादा फुट छोड़ना पड़ता है. तो हमारे नेबरहुड में यहाँ घर नया बन रहा था, उन्होंने बेसमेंट खुदाई और साथ वाले घर से ना उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, और वो साथ वाले घर की एक साथ पूरी आधी ऐसे गिर गई नीचे. वो फॉर्चुनेटली वो लोग NRIs थे, वो बाहर रहते थे, घर खाली था, नुकसान नहीं हुआ किसी का, बट बहुत सीरियस हो सकते कॉन्सिक्वेंसेस. तो सेफ्टी वाले पॉइंट में आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो कि रूल एंड रेगुलेशन है कि आपने इतने इतने फुट छोड़ना है अगर आप कंस्ट्रक्टेड हाउसेस के बीच में बेसमेंट खोद रहे हो. ठीक है, और नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिजाइन रिक्वायरमेंट कैन आल्सो लीड टू एंक्रोचमेंट. लोग एंक्रोचमेंट्स करते हैं. एंक्रोचमेंट समझते हो ना आप, कि आगे आगे बढ़ते रहते हैं, कि जो है कि अपनी जगह बना ली थे, थोड़ा सा आगे गए, फिर थोड़ा सा और आगे गए, तो एंक्रोचमेंट है. गलियां छोटी हो जाती हैं. एंक्रोचमेंट समझ आ गई आपको? Yes. लोग अपने घरों के आगे भी, जहाँ पे फुटपाथ, आगे भी अपना पूरा लॉन सही बना लेते हैं पूरा. ठीक है, वेरी कॉमन इन इंडिया. डिसएडवांटेजेस ऑफ रेगुलेशंस क्या है कि अब लोग जो अपनी इंडिविजुअलिटी से लोग बनाएंगे तो एक उनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, और कई लोग बिगर लॉन बनाना चाहते हैं बिगर बना लेंगे, कई कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. और दूसरा है एक्लेक्टिक नेबरहुड. एक्लेक्टिक होता है जिसमें एक जैसी, मैंने उसका मीनिंग नीचे डाल दिया इस फाइल में. एक्लेक्टिक होता है वैरायटी वाली चीजों को प्रेफर करना, नॉट फॉलोइंग वन स्टाइल और सेट ऑफ आइडियाज, बट चूजिंग फ्रॉम अ वाइड, यूजिंग वाइड वैरायटी. ठीक है, तो ये वाइड वैरायटी में उसको एक्लेक्टिक कहते हैं. तो एक्लेक्टिक नेबरहुड्स जो है ना, वो अपनी चार्म, उनमें अपना एक चार्म एंड ब्यूटी होता है.
तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है रेगुलेशन का कि एक्लेक्टिक नेबरहुड्स नहीं आएंगे, सब अलग अलग दिखने वाली चीजें नहीं होंगी, ठीक है। सो ये है आपका ये वाला ऐसे। ओके, it is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks. To what extent do you agree or disagree? Squares and parks होने के जो टाउन्स एंड सिटीज में बड़े बड़े स्क्वायर्स एंड पार्क्स, स्क्वायर्स होते हैं जैसे कोई एरिया अंदर, जैसे वहाँ पे रैली वगैरह हो जाती है, कुछ होती है, या कहीं कुछ स्टैचू बना हुआ है उसके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है स्क्वायर, तो उनको स्क्वायर्स कहते हैं और पार्क्स है। ये चीजें जो है टाउन्स में होनी चाहिए। इनके एडवांटेजेस मैंने एग्री करा है कि इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने इनके एडवांटेजेस लिखनी है कि इनके फायदे हैं, इनमें आइडेंटिटी होती है, टूरिज्म आता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे आपको समझ आ जाने हैं, इनसे 3 पैरे बन जाएंगे, एग्री करके ऐसे बन जाएगा। आपको लगता है पढ़ के कर पाओगे ये वाला? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We will do it. यस मैम। मैम ये स्क्वायर है वो सर्कल बोल सकते हैं इसके वो? हाँ, वो उसका मतलब वही है, वो हाँ, राउंड अबाउट होता है। राउंड अबाउट तो सड़कों के बीच में होता है ना, ये जैसे जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में एक सर्कल या स्क्वायर बना दिया जहाँ कोई स्टैचू लगा दिया और लोग उसके आसपास इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, बैठने की जगह बना, उनको स्क्वायर्स कहते हैं। यस, ओके, लाइक दैट। ये है nowadays some buildings such as offices and schools have open space design instead of separate rooms. अब ये open space architecture के फायदे नुकसान है, do you think it is a positive or a negative development? तो मैंने लिखा है while there are a few drawbacks of open space architecture, the positives are much more. ठीक है, तो इसके जो फायदे हैं, इसके reasons मांगे हैं। reasons और फायदे ना सेम है, इनको 2 पैराज में आप लिख सकते हो, क्योंकि जिस वजह से ओपन स्पेस डिजाइन हो रहा है प्रमोट, वो एक तरह से उसका फायदा है, इसके लिए लोग ऐसा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया इससे क्या है ओपन स्पेस आर्किटेक्चर के? बड़ा सा हॉल, उसके अंदर सिर्फ पार्टीशन करके रूम होता है। हाँ, आजकल बैंक्स में भी जाओ तो सारे ऐसे ही बैठे हैं ना, सारे एक एक क्यूबिकल में, सब एक दूसरे से सब दिख जाता है। ऐसे ही इनको प्रमोट किया जा रहा है ओपन स्पेस डिजाइन इंस्टेड ऑफ सेपरेट रूम्स। ठीक है, तो इससे एक तो इससे ये सस्ता पड़ता है, इससे शेयरिंग प्रमोट होती है, कोलैबोरेशन बेटर होती है एम्प्लॉइज की, और बच्चे भी एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं बाकी। पर ड्रॉबैक क्या है? नॉइज होती है, और टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं वो सब तरफ आवाज जा रही है, और लैक ऑफ प्राइवेसी है। कई लोग इससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस पे असर जाता है। तो ये पॉइंट सब आप पढ़ लोगे, हो जाएंगे। आगे चलो। Yes. मुझे लगता है बच्चे ना देखो कम हो गए हैं, 20-25 तो छोड़ गए हैं। ओके, चल पिछड़े घूमण भी गली गली करे जा पढ़, मैनू नहीं पता हैगा तेरे को टिपूगी पढ़ना। Towns and cities are attractive places. Some people suggest that the government should spend money putting in more works of art like paintings and statues to make them better. Okay, towns and cities important places हैं और अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को और वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक स्टैचूज और पेंटिंग्स इनमें डालनी चाहिए ताकि ये बेटर हो जाए। तो फिर मैंने यही एग्री करा है और मैंने लिखा है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्यूटिफाई टाउन्स एंड सिटीज। इनको ब्यूटिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 3 पॉइंट से मेरे 3 पैरे बने हुए हैं। ओके, गो थ्रू देम एंड आई हैव आल्सो एडेड द होल एसेज आफ्टर दिस इन दिस फाइल फॉर यू। ओके, तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए ये एडवांटेज है, उनको सारे ये वाले एसेज भी मिल जाएंगे और ये वाले पॉइंट्स के आइडियाज भी। ये मैंने कल बैठ के एंड आई हैव कंपाइल्ड, बिलीव मी इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे को बार बार सब पूछे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने बिजी लग रहे हो। मैंने कहा बस मैं कर रही हूँ कुछ बहुत जरूरी, अब मेरे को कर लेने दो। ओके, अगला है some people think it is more important to plant trees in open areas of towns and cities than to build more housing। तो मैंने strongly agree करा है कि अगर किसी शहर में ओपन एरिया है वहां पे ट्रीज लगाओ, ना कि और घर बना दो। इससे आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? तो फिर मैंने ट्रीज के एडवांटेजेस लिखे और बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। एक तो पोल्यूटेड एयर, पोल्यूशन कम होती है, और एक ट्रीज ना बफर एक्ट करती है, नॉइज कम होती है ट्रीज से।
अगर ट्रीज हैं आपके बाहर घर के, तो थोड़ी जो नॉइज है सड़क से आ रही है वो कम हो जाती है, दे एक्ट एज ए बफर। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट भी बेटर होती है। अगर ट्रीज ज्यादा है तो रेन वाटर रन ऑफ नहीं करता ड्रेन्स में, इट सीप्स डाउन। ठीक है, फिल्टर हो जाता है ग्राउंड में। एंड देन नेचुरल हैबिटेट टू बर्ड्स एंड एनिमल्स इज अनदर एडवांटेज। ट्रीज से एनर्जी कंजम्पशन कम होती है अगर सही जगह पे ट्रीज लग जाएं। तो अगर हमारा जो घर है वो जैसे अगर वो प्रेजेंटली ईस्ट फेसिंग है, यहाँ धूप नहीं आती, पर जिन घरों में सामने हमारे धूप आती है उनके आगे अगर बड़े बड़े ट्रीज है ना, तो एक तरह से वो पर्दा लग जाता है और उनके एकदम से धूप अंदर फिल्टर थोड़ी होके जाती है, तो उनकी एयर कंडीशनिंग कम नहीं तो बहुत तप जाते हैं घर गर्मियों में। तो ट्रीज जो है वो थोड़ा सा एनर्जी सेविंग के में ही काम आते हैं। एंड ट्रीज में आप जैसे इवन पार्किंग लॉट्स में भी ट्रीज जो है वो कार वगैरह ठंडी वहीं पे ढूंढते हो ना, अगर पार्किंग करनी हो वहाँ पेड़ है वहाँ पार्क कर देते हैं, उसके नीचे ठंडी रहेगी। यस मैम। है ना। और सोशली एंड इकोनॉमिकली भी अगर ट्रीज है तो सोशली भी हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग उनके नीचे बैठते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। इकोनॉमिकली इसलिए कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें ट्रीज हैं साथ में, उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है अर्बन प्रॉपर्टी की जिसमें पेड़ हैं, वो मच मोर है देन ए प्लेस विच इज विदाउट ट्रीज। ठीक है, और जो रिटेल आउटलेट्स हैं और बिजनेसेस हैं जिस एरिया में ट्रीज हैं, अगर उसमें खुलते हैं तो उससे कस्टमर्स भी उनको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यस मैम। ये वाले अब सारे एसेज हैं। एज हाउसिंग इज अ बेसिक नीड फॉर पीपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हाउसिंग फॉर एवरीवन हु कैन नॉट अफोर्ड इट। ये मैंने ऐसे दोबारा लिखा है, पहले वाला इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने सीधा लिख दिया है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की लाइफ इंप्रूव करे, पर फ्री हाउसिंग सबको दे, इससे मैंने डिसएग्री करा। तो कंसेशन ये दे दिया है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की लाइफ इंप्रूव करे, पर फ्री हाउसिंग से मैं डेफिनेटली डिसएग्री करती हूँ कि सबको फ्री हाउसिंग दे दो। ठीक है, एक तो इकोनॉमी इम्बैलेंस हो जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। दूसरा, टैक्स पेयर नहीं हैप्पी होएगा कि हम टैक्स दे रहे हैं और घर इनको मिल रहा है जो वेले बैठे हैं। ठीक है, और तीसरा जो है गवर्नमेंट बेटर चीज कर सकती है, गवर्नमेंट की उनको ना जो पुअर सेक्शंस है उनको LIG हाउसिंग वगैरह बनवा के दे सकती है, ताकि वो उसको अफोर्ड कर लें। सबको फ्री हाउसिंग देने से लोग भी लेजी हो जाएंगे और कहेंगे बैठे बैठाए मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यस मैम। फिर एक ऐसे है ये वाला, ये GT की बुक में है। Some people think that government should be held responsible when problems of homelessness and unemployment arise. तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जब होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट होए। क्या आप एग्री करते हो? अब ये जो है ना, मैंने इससे ये कहा है कि गवर्नमेंट हर केस में, होमलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट में हर केस में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आज के टाइम में एक एग्जांपल आप डाल सकते हो क्या? जो कोविड-19 की सिचुएशन आई हुई है, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत से लोग होमलेस हो गए हैं, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नहीं ना। सो हमेशा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अब अमेरिका में रिसेशन आया था 2008 में, उसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत पड़ा था, बहुत लोग अफेक्ट हुए थे। ठीक है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई कसूर था? नहीं। तो हर कंट्री में ना एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कंट्री के अंदर के फैक्टर्स हैं, उनके लिए तो हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जैसे 2 एग्जांपल्स मैंने दे दी, रिसेशन ऑफ US एंड कोविड, इनमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो गवर्नमेंट को हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब समझ आ गया ना आपको पॉइंट? अब पढ़ोगे ऐसे और ये पॉइंट्स आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे है, कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो लोग कहते हैं कि जो नए घर बनने हैं वो एग्जिस्टिंग सिटीज में ना बना के एग्जिस्टिंग सिटीज में बनाओ, ना कि कंट्री साइड में नए टाउन बनाओ। क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? मैंने इसको कहा है कि जो न्यू टाउन्स है वो एग्जिस्टिंग वो कंट्री साइड में बनाओ, उसके फायदे ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है बेनिफिट ऑफ न्यू टाउन्स इन द कंट्री साइड लिखा है।
दिस इज डिसएग्री। तो अगर कंट्री साइड में नए घर बनेंगे, नए टाउन बनेंगे तो अफोर्डेबल होंगे, ये पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि वहां पे लैंड सस्ता होएगा रादर देन एग्जिस्टिंग सिटीज, एंड प्रेजेंट सिटीज ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हैं, और नए टाउन जो है उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उस तरह के घर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में ही। और न्यू टाउन्स को अगर हम वहां बनाएंगे, उसके नुकसान क्या होंगे? लोकल इकोनॉमी पे नुकसान हो जाएगा, कई बिजनेसेस शट हो जाएंगी, लोगों को अपने वर्क प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, एंड कम्यूट टाइम बढ़ जाएगा लोगों का। तो ये पॉइंट्स तो पहले वाले ही हैं एक तरह से, पर आपको ये आइडिया लग गया कि ये ऐसे आया तो कैसे हैंडल करना है। Okay, last essay for today. In some countries, most people prefer to rent their homes rather than buying them. What are the advantages and disadvantages of renting a home? Renting में financial benefits हैं, किराए पे रह लो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, घर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। सेकेंडली, टेनेंट को टैक्सेस नहीं देने पड़ते प्रॉपर्टी के, जो कि ओनर को देने पड़ते हैं। एंड फिर अगर थर्ड पॉइंट है कि अगर ट्रांसफर हो जाए कहीं तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बोरिया बिस्तरा उठाया और नए शहर में चले गए, वहां पे किराए पे ले लिया घर। अपना घर होता है तो 100 चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट है, किसी के काम में शिफ्टिंग प्लेसेस की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो अगर एक जगह पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी घर लेने की तो वो वेस्ट ही जाती है, इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है। ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अपना कहने को कुछ नहीं होता, किराए का ही होता है सब कुछ, ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। और अगर आप रेंट करते हो तो आपको लीज साइन करनी है और वेकेट अकॉर्डिंगली करना है, आप अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते हो जब मर्जी, ठीक है। तो यू हैव टू, अगर आप छोड़ते हो अपनी मर्जी से तो आपको 3 महीने का रेंट आपका फोरगो हो जाता है, कुछ ऐसे है इसका क्लॉज, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी एग्जॉस्टिव क्लास दी आपको। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे समथिंग आपको, कुछ आपको। मैम ये रेंट वाला जो है आपने बताया, हाँ, उसमें डिसएडवांटेजेस मैम ये भी लिख सकते हैं ना कि ये इंटरमीडियरीज होते हैं, वो काफी सारा ले जाते हैं, वो दलाल जिसे हम बोलते हैं। 1 महीने का किराया खा जाते हैं वो। हाँ, 1 महीने का सुना है। यस मैम। हाँ, लिख सकते हो। ब्रोकर मैम, ऑफर सीधे ब्रोकर। बीच में डाल सकते हैं। यस, हाँ, बड़े पॉइंट डाल सकते हो। आपका तो पैसा देखो, एक तरह से आप किसी और की मॉर्गेज दे रहे हो, आपका तो कुछ अपने कहने को है ही नहीं। हम लोग तो, हमारी इंडियंस की तो यही सोच है कि अपना होना चाहिए, अपना बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, अपना ले लो। आप किराया इतना दे रहे हो, उससे बेटर है उसकी मॉर्गेज का अमाउंट दे दो, आपको अपनी प्रॉपर्टी बनी जा रही है। हम तो इस वे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी की तो प्राइस बढ़ती है ना टाइम के साथ, ठीक है। यस मैम। चलो, एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, दिया ने, मैम ने हमारे लिए बहुत सिंपलीफाई कर दिया है और लैंग्वेज भी सिंपल है। थैंक यू दिया, सबको आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, वेरी नाइस। एंड चलो, अब सी यू टुमारो। अब रीडिंग कराने की मेरे पास हिम्मत नहीं है, ठीक है। रीडिंग को अपने आप कर लेना, ठीक है। हाँ जी, बोलो मैम। मुझे क्वेश्चन है, लाइक जब आप बोलते हो कि सब्जेक्टिव चेकिंग होती है, लाइक स्पीकिंग एज वेल, तो वो सब्जेक्टिव मींस एक्चुअली मुझे पता नहीं। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर जो है, देखो मैंने ना 2019 में, अब 2021 की बात नहीं कर रही हूँ, 20 के शुरू में भी 2019 में मैंने 70-75 स्टूडेंट्स के ना रीवैल भरवाए थे, 67 के बैंड बढ़ के आए थे, समझ गए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने एक एक की फाइल सेव करी हुई है बच्चे की, और मैंने इनको मेल्स करी हुई है आईडीपी को, ब्रिटिश हाउस को। तंग आ गए थे मेरे से। मैंने कहा अपने एग्जामिनर्स को सुधारो, हमें खुशी होती है किसी के बैंड बढ़ते हैं, पर हमें साथ में ये दुख होता है कि और बड़े बच्चे हैं जिन्होंने रीवैल नहीं भरी, वो ज्यादा डिजर्व करते थे, उनको भी कम दिया। समझ गए ना बात? इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। Ma'am, then why they are doing wrong thing? they don't know that they are doing wrong thing. वो तो अपने आप को बड़ा राइट ही समझते हैं। Ma'am, then who will tell them?
We have told them. I've told them so many times. Ma'am, they are destroying the career of a student. Yes, they are doing it. So you're quite right. Chaliye, okay, bye. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good Thank day. you. Thank you.